प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। इससे पहले कि अपनी सभा में हम आगे बढ़े, जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, तहे दिल से आपके बड़े शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें। खुदावन आप महान सर्वसामर्थी खुदावन है प्रभु यीशु मसीह, और आपके अनुग्रह के तले प्रभु हम यहाँ पर आते हैं प्रभु, और इन आत्मिक बातों को खुदावन सुनते हैं और खाते हैं प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जैसे पौलुस ने कहा प्रभु कि महिमा से महिमा में आप हमें बदलते जा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ खुदावन कैसे आप हमारे बीच में आते हैं, वचनों को खोलते हैं प्रभु, हमारी आंखों को खोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन हमारे कानों को खोलते हैं प्रभु, ताकि हम उन बातों को प्रभु यीशु मसीह सुन सकें जिससे कि हमारा रैप्चर हो सके। ओ खुदावन ये वही बात है खुदावन जो हमारे रैप्चरिंग फेथ को बढ़ाती जाती हैं प्रभु। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी डीलिंग के लिए, आपकी बातचीत के लिए प्रभु बहुत ही धन्यवाद देता हूँ खुदावन। और हम जानते हैं प्रभु कि हमारे पृथ्वी का समय बहुत ही थोड़ा रह गया प्रभु, हम जल्दी से अपनी थियोफनी में प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु। वो आपका नाम मुबारक हो प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने भाई बहन इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, वो इस संदेश को सुन करके बड़े अपेक्षित बैठे प्रभु, और इस संदेश को सुन के लाभान्वित हो सकें प्रभु। मेरी प्रार्थना है खुदावन, अगर कोई हमारे बीच में बीमार या परेशान हाल है प्रभु, ओ खुदा उस भाई या बहन को आप संपूर्ण चंगाई दें। अजीज पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, उस शरीर को आप इस्तेमाल करते हैं प्रभु, आप खुदावंद उनको बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह। तमाम गैजेट्स, इंटरनेट, सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ खुदावंद, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु, आप हमारे बीच में आए प्रभु, और खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे बीच में डेरा करें प्रभु। आपकी तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गीत का नंबर 174, When the saints go marching in. Amen, hallelujah। आप लोग खुश हैं? हम मुसाफिर हैं, बहुत जल्दी इस संसार को छोड़ के हम जाने वाले हैं। Amen। I'm a pilgrim and a stranger, wandering through this world of sin, on my way to that fair city, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number, when the saints go marching. Once again. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Oh, I know I'll see my Savior, if my life is free from sin. Heaven's doors will open for me, when the saints go marching in. Hallelujah! When the saints go marching in, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. When we gather round the throne, and the gates are closed within, oh, I'll be shouting glory, glory, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Once again. Oh, when the saints go marching in,
go marching in. When the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, I am waiting for the chariot to swing low, and I'll step in. On the clouds I'll ride to heaven. Oh, when the saints go marching in. When the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Once again. When the saints go marching in. Hallelujah. When the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, I am marked, Marked, I am marked. I am marked now wherever I go. oh, I am marked, marked, I am marked. Just what I am, everyone seems to know. Oh, I am sealed, sealed, I am sealed. I am sealed by His Spirit divine. Oh, glory to God, hallelujah, amen. I am His, and I know He is mine. Once again. I am marked, I am marked. I am marked now wherever I go. Oh, I am marked, I am marked. Just what I am, everyone seems to know. Oh, I am sealed, sealed, I am sealed. I am sealed by the Spirit divine. Oh, glory to God, hallelujah, amen. I am His, and I know He is mine. Oh, glory to God, hallelujah, amen. I am His, and I know He is mine. Oh, glory to God, hallelujah, amen. I am His, and I know He is mine. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah. I'm marked by His Spirit divine. Hallelujah. He's put a seal on me. Amen. और जिसको पे वो मोहर लगाते हैं वो गणतव्य के लिए सुरक्षित है. Amen. प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु का नाम मुबारक हो. आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे जबकि हम बड़ी अपेक्षा में यहाँ बैठे हैं उस संदेश को सुनने के लिए जो प्रभु हमसे आज बातचीत करना चाहते हैं. Only believe, all things are possible. Only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord,
I believe. That we all believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish, Joshua. My Jesus is here, and all things are. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Let's open our Bibles आइए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे to Hebrews chapter 7. इब्रानियों 7वें अध्याय में. And we are going to read from verse 4 onwards till verse 10. और हम उसकी चौथी आयत से 10वीं आयत तक पढ़ेंगे. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people, according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham and blessed him that had the promises. Amen, amen, And without all contradiction, the less is blessed of the better. amen. And here men that die receive tithes, but there he receiveth them of whom it is witnessed that he liveth. And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, paid tithes in Abraham, for he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. Amen, hallelujah. Under your blood we come. आपके Lord. लहू के नीचे हम आते हैं. Please open thy word for us, Lord. कृपया करके अपने वचनों को खोले हमारे लिए प्रभु. Humbly we come under your blood. बड़ी दीनता के साथ आपके लहू के नीचे हम आते हैं. I खुदा, pray for the sick and the needy of my church. मेरी कलीसिया के लिए खुदा, बीमारों के लिए और जरूरतमंदों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. Please give grace कृपया करके अनुग्रह दें and give healing to all of them. और उन सबों को खुदावन चंगाई बख्शें. In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen. आमीन. God bless you. Can be seated. खुदावन आपको आशीष दे. आप बैठ सकते हैं. I'll just call Brother Rajiv for just a minute. मैं एक मिनट के लिए महाराज जी को. There's something I had to do. I didn't do it on Sunday. कुछ ऐसी चीज थी जो मुझे करनी थी जो कि मैंने संडे को नहीं कर पाया. But may God give me grace because this is a very good and wonderful atmosphere. पर खुदावन मुझे अनुग्रह दे क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया अद्भुत मौका है, माहौल है. We would like to pray over these ribbons. हम इन रिबन्स के ऊपर प्रार्थना करना चाहेंगे. They would be cut and given as prayer cloths to those who want them. ये काट के दिए जाएंगे प्रेयर क्लॉथ्स के रूप में, प्रार्थना वाले कपड़े के रूप में उनको जो वो चाहते हैं. So God really bless you, and it is being telecast, so we'll pray for it. खुदावन आपको आशीष दे और ये प्रसारित किया जा रहा है तो हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे. God really bless you. खुदावन आपको आशीष दे. So I have these two ribbons. I'll be giving them to Brother Rajiv, and you can contact Brother Rajiv for getting the prayer cloth. तो ये मेरे पास 2 रिबन हैं. आप भाई राजीव से संपर्क कर सकते हैं. Amen. और मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा. आप उनको भाई राजीव से ले सकते हैं. Lord Jesus, we really thank you. प्रभु यीशु, हम आपका वास्तविकता में धन्यवाद देते हैं. You are Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. आप हमारे प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान हैं.
And today I think I'm in a better position to pray for these ribbons. और मैं खुदावन आज सोचता हूँ कि मैं एक बेहतर स्थिति में हूँ कि मैं इन रिबन्स के लिए प्रार्थना कर पाऊं। How the scripture says, कैसे पवित्र शास्त्र ये बोलता है, Elijah laid himself over that boy and he came from the dead. कैसे एलिया ने अपने आप को पसरा दिया उस लड़के के ऊपर और वो लड़का मृतकों में से जी उठा। And how body aprons and kerchiefs touched the body of Paul and laid on the sick and they recovered. और कैसे वस्त्रों को और रुमालों को खुदावन पौलुस के से छुआ के बीमारों पे डाला जाता था और वो चंगे हो जाते थे। And you are the same Lord Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. और आप वही समान प्रभु यीशु मसीह हैं, कल आज और युगानुग एक समान। In that same power, Lord, उसी सामर्थ में खुदावंद, you are the God of our precious prophet, Brother Branham, आप हमारे बेशकीमती नबी भाई ब्रैनम के खुदा हैं, who used this so many times. जिसने बहुतेरी दफा इसका इस्तेमाल किया। And we'd like to use that same modality today. और खुदावन उसी तरीके को हम आज इस्तेमाल करना चाहते हैं। And we pray over these ribbons. और हम इन रिबनों पे प्रार्थना करते हैं, Let a healing anointing go with them. खुदावन ऐसा हो कि चंगाई वाला अभिषेक इनमें होके जाए। And wherever they are distributed, Lord, और जहां कहीं इनको बांटा जाता है खुदावन, and applied by faith, और विश्वास के द्वारा रखा लगाया जाता है, let the sick be immediately healed. ऐसा हो कि बीमार एकदम से चंगाई प्राप्त करे। And may we hear testimonies of this, Lord. और खुदावन इसके बाइस हम बहुतेरी गवाहियां सुन पाएं, For we ask this in the name of Jesus Christ. क्योंकि हम ये मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में And for your glory, और आपकी ही महिमा के लिए। let that anointing go with these ribbons. ऐसा हो खुदावन वो अभिषेक इन रिबनों के साथ जाए। In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। So God bless you. तो खुदावन आपको बरकत दे। I'll be giving it to Brother Rajiv, मैं इन्हें भाई राजीव को दूंगा and he will cut it and give it to you, and you can apply it, and he'll give you how to apply it. और वो आपको देंगे, आप वो काट के इसको देंगे और वो आपको बताएंगे कि इसको कैसे लगाना है। God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दे। In fact, one message I was reading, I just shared this testimony, I think. When the prayer cloth was applied, the boy had broken bones because of the accident. And immediately when the prayer cloth touched his body, all bones were joined. Praise Lord. तो ये मैं इसको आपको गवाही के रूप में बताऊंगा। मैं संदेश पढ़ रहा था एक खास, और वहां पर ये था कि टूटी हुई हड्डियां थी एक लड़के की, जो कि एक एक्सीडेंट में हुआ था और उसकी हड्डियां टूट गई थी। पर जैसे ही ये प्रेयर क्लॉथ लगाया गया, एकदम से उस लड़के की हड्डियां जुड़ गईं। And doctors didn't even want to handle him और यहाँ तक कि डॉक्टर जो हैं उसको इलाज भी नहीं करना चाहते, उसको पकड़ना नहीं चाहते because थे, the bones were broken. क्योंकि हड्डियां ऐसे टूटी हुई थी। But immediately when his next x-ray was done, there was no fracture at all. परंतु एकदम से जब अगला एक्सरे किया गया तो उसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं निकला। Then Brother Hallelujah. Branham gave another testimony of a sister who was bleeding फिर भाई ब्रैनम ने एक और बहन की गवाही दी जिनको लहू बह रहा था, because she had cut her hand or something. क्योंकि उनका हाथ कट गया था या कुछ ऐसा हुआ था। And the minute the prayer cloth touched, और जिस क्षण उस प्रार्थना वाले कपड़े ने, प्रेयर क्लॉथ ने उनको छुआ, the bleeding was not actually stopping. जो लहू बहना था वो वास्तविकता में रुक नहीं रहा था। And they had tried other things. उन्होंने विभिन्न विभिन्न तरीके की कोशिश करी थी। Then she remembered about the prayer cloth. फिर उन्हें याद आया उस प्रेयर क्लॉथ के बारे में, And when they touched that wound, और जब उन्होंने उस घाव पे उसको छुआया, the prophet said, even there was no blood stain on the prayer cloth. हालेलुया। नबी ने बोला यहाँ तक कि लहू का कोई दाग भी नहीं आया उस प्रेयर क्लॉथ के The ऊपर। bleeding stopped immediately. जो लहू बहना था एकदम रुक गया। So we हालेलुया। have a living God. तो हमारा एक जीवता खुदा है। आमेन। God of Elijah is our God. एलिया का खुदा हमारा खुदा है। God of Brother William Branham is our God. खुदावन हमारा भाई विलियम ब्रैनम का हमारा खुदा है। And true, as we were seeing on Sunday, और ये बात सच्ची है, जैसा हम संडे को देख रहे थे, we'll see it in little things, हम उन बातों को छोटी चीजों में देखेंगे, then it'll slowly become bigger things. फिर ये धीरे धीरे करके बड़ी चीजें बनेगा। Our God is very great. हमारा खुदा बहुत महान है। Amen. आमीन। Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावंद का नाम। So God really bless you. तो खुदावन आपको वास्तविकता में बरकत दे। I hope you've been meditating on what have been preached on Sunday. मैं आशा करता हूं आप उसमें मनन कर रहे होंगे जो कुछ प्रचार किया गया संडे को।
one most important thing is एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, when you sit in the meeting, sit with an attitude to learn. जब आप मीटिंग में बैठते हैं एक ऐसे एटीट्यूड के साथ बैठिए कि आप सीखना चाहते हैं। As if you're hearing it for the first time. आमीन। जैसा मानो कि आप इसे पहली दफा सुन रहे हैं। Then you will benefit from the meeting. तब आप उस मीटिंग से लाभ उठा पाएंगे, Otherwise, it'll just be a washout. नहीं तो ये सब धुल जाएगा। So God really bless you. तो खुदावन आपको वास्तविकता में बरकत दे। Now today I would like to move on into something which the prophet explains. अब मैं कुछ आगे बढ़ना चाहूंगा उन कुछ चीजों में जो नबी समझाते हैं। And before I go any further, और इससे पहले मैं कहीं आगे बढ़ूं, I would like to say one point. मैं एक बात कहना चाहूंगा। The portion of the message I would be reading today जो हिस्सा संदेश का मैं आज पढ़ूंगा deals with lot of practical things in our daily life. वो बहुत ज्यादा उन करने की चीजों से संबंधित है, प्रैक्टिकल चीजों से जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में आती हैं। Hear it carefully ध्यानपूर्वक उन्हें सुनिएगा, because these are not just to be heard, क्योंकि ये चीजें केवल सुनने के लिए नहीं मात्र, these things are to be applied. आमीन, परंतु इन चीजों को लागू करना है, अप्लाई करना है। Token was not to be heard, टोकन सुनने के लिए नहीं था, चिन्ह it was to be applied. परंतु इसलिए था ताकि वो लगाया जाए। And I pray may God give you an eye grace to understand these things. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन आपको और मुझे ये अनुग्रह बख्शे कि हम इन चीजों को समझ पाएं। Last time I was talking about this subject, we were talking about how Levi gave his tithes in Abraham to Melchizedek. पिछली दफा हम इस विषय को देख रहे थे, इस विषय को कि कैसे लेवी ने अब्राहम के अंदर होते हुए मल्कीसेदेक को दसवांश दिया। And after explaining that, और उसको समझाने के पश्चात Brother Branham said, can you see something? भाई ब्रैनम कहते हैं क्या आप कुछ देख पाते हैं? How Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham. कैसे लेवी ने दसवांश दिया जब वो अब्राहम की सुल्फ में था। Then Brother Branham taking this point says, तब भाई ब्रैनम इस पॉइंट को लेके ये कहते हैं, then you that can't believe in predestination, तो आप जो पहले से ठहराए जाने पे यकीन नहीं कर पाते, before ordination. पहले ठहराए जाने से, What about this? इसके बारे में क्या? You see, Levi, even before he was born, he did that work in his great-great-great-grandfather. आप पाएंगे लेवी इससे पहले कि वो पैदा हो, उसने उस खास काम को अपने लक्कड़ दादा में, पर दादा में किया था। So, in other words, तो दूसरे शब्दों में you need to understand, आपको ये समझना जरूरी है, things are predestinated. आमीन, चीजें पहले से ठहराई गई हैं। Levi was predestinated for that office. हालेलुया। लेवी जो है पहले से ठहराया गया था उस ओहदे के लिए। Even before he was born, ठीक यहाँ तक कि उसके पैदा होने से भी पहले he was doing that work. वो उस काम को कर रहा था, And actually he was paying his tithes और वास्तविकता में वो अपने दसवांश को दे रहा था when he was in the loins of Abraham. जब वो अब्राहम की सुल्फ में था। Taking that point, उस बात को लेते हुए Brother Branham starts moving on this line of predestination भाई ब्रैनम इसी पंक्ति में आगे बढ़ते हैं, पहले से ठहराए हुए जाने के लिए and the ऊपर foreknowledge of God. और खुदा के पूर्व ज्ञान के ऊपर। I'm now reading from para 129. अब मैं पढ़ रहा हूँ 129 अनुच्छेद से। He is not willing that any should perish. वो नहीं चाहता कि कोई भी बर्बाद हो, Certainly not. पक्की बात है, But if he is God, परंतु अगर वो खुदा है, he knowed who would be saved and who wouldn't be saved. वो जानता था पहले से कि कौन बचाया जाएगा और कौन नहीं बचेगा। Or he didn't know anything. नहीं तो उसे कुछ मालूम ही नहीं। If he didn't know, अगर उसे नहीं पता, if he didn't know who would make the rapture अगर उसे ये नहीं पता कौन रैप्चर में होगा, before the world was ever formed, इससे पहले कि जगत पूरा बने, then he's not God. तब वो खुदा है ही नहीं। Let's talk about an indirect statement. आइए हम एक दूसरे वाक्य की बात करें, इनडायरेक्ट वाक्य की। That means he knew there are some. इसका मतलब ये है कि वो जानता था कुछ थे, He knew about certain names वो कुछ खास नामों को जानता था who would make it to the rapture. जो रैप्चर तक पहुंच पाएंगे। In other words, rapture is also predestinated. आमीन। दूसरे शब्दों में रैप्चर भी पहले से ठहराया गया है, And there are certain people who are foreordained for that rapture. और कुछ खास लोग हैं जो पूर्वानियुक्त किए गए हैं उस रैप्चर के लिए। That's why the message rapture, Brother Branham says, is for the fathers
predestinated genes. आमेन। इसलिए रैप्चर वाले संदेश में हमने कहा ये पिता की पूर्व पहले से ठहराई गई जीवांशों के लिए है। So it will be only those who will be making it to the rapture. तो ये केवल वही होंगे जो रैप्चर तक पहुंच पाएंगे। I hope you're getting it now. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ रहे होंगे अब। So rapture is also based on predestination. तो रैप्चर भी आज निर्धारित होता है, बेस्ड है पहले से ठहराए जाने के ऊपर। So before the world was ever formed, तो इससे पहले दुनिया ने को कभी बनाया गया, that means God knew about those who will be making it to the rapture. इसका मतलब खुदावन जानते थे उन लोगों को जो रैप्चर तक पहुंचेंगे, Otherwise, He's not God. नहीं तो वो खुदा है ही नहीं। If He's infinite, अगर वो असीमित है He knowed every flea, every fly, every louse, every chiga. तो वो हर एक मक्खी को, हर एक उड़ने वाली के कीड़े को और हर एक जू को, हर एक छोटे कीड़े को जो खून चूसता है, He knew it. वो उसे जानता था That would ever be on the earth जो कि कभी इस पृथ्वी पे होगा। before the earth was ever formed. इससे पहले पृथ्वी ने कभी रूप लिया, He knew all these. वो इन सब को जानता था। That's right. ये बात ठीक है, He knew all things वो सारी चीजों को जानता था। before the foundation of the world. जगत की नेव रखने से पहले He knew us. वो हमें जानता था। The Bible said that He knew us and predestinated us. बाइबल ये कहती है उसने हमें जाना और पहले से ठहरा दिया। Let's settle this just once. आइए हम इस बात को सेटल कर लें एक दफा। And then He asks us to turn to Ephesians chapter 1. और फिर वो हमसे कहते हैं कि इफिसियों पहला अध्याय निकालें। Let's turn to Ephesians chapter आइए 1. निकालें इफिसियों पहला अध्याय। And we are going to read something. और हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे। Listen now. सुनिए अब। I want to read here just a minute मैं यहाँ पर 1 मिनट पढ़ना so चाहता that you हूँ can really understand that it's not just what something that I am trying to tell you. ताकि आप वास्तविकता समझ पाएं कि ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, It's something God's trying to tell you. परंतु ये कुछ ऐसी चीज है जो खुदा आपको बताने चाह रहा है। See, now listen to this real close. देखिए अब ध्यान पूर्वक इसको सुनिए First करीबी से। chapter of Ephesians. इफिसियों का पहला अध्याय। Now, अब we are going to read from verse 1. हम पहली आयत से पढ़ेंगे। Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, पौलुस जो यीशु मसीह का प्रेरित है खुदा की मर्जी के अनुसार। the same man that wrote the Hebrew letter is writing this letter. आमेन। वही आदमी जिसने इब्रानियों की चिट्ठी को लिखा है वो इस चिट्ठी को भी लिख रहा है। To the saints, this is not to the unbelievers, but to the saints, the sainted ones. उन संतों को, ये वो अविश्वासी नहीं है परंतु संत, वो जो कि संत किए गए, पवित्र किए गए हैं। So you see, even before you start reading Ephesians, तो आप पाएंगे ठीक इससे पहले यहां तक कि जब आप इफिसियों को पढ़ना चालू करते हैं उससे पहले this letter is not meant for unbelievers. ये चिट्ठी अविश्वासियों के लिए है ही नहीं। So if unbeliever reads Ephesians, can't understand it. तो अगर अविश्वासी इसको पढ़ेगा तो इसको समझ नहीं पाएगा। You know, the world is confused about predestination. आप जानते हैं दुनिया भ्रमित है, धोखे में है, कंफ्यूज्ड है। Now you can understand why. प्रीडेस्टिनेशन के ऊपर हम नहीं समझ सकते। I'm कैसे? saying, brother, now you can understand why. अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इस। Please be in tune with me, brother, please. God bless you. So you find, now you can understand why. अब आप समझ सकते हैं क्यों। The reason is, कारण ये है they're not believers. वो अविश्वासी है, वो विश्वासी है ही नहीं। This letter was not meant for unbelievers. ये चिट्ठी अविश्वासियों के लिए रखी नहीं गई थी। It was written to sanctified ones. ये उनको लिखी गई जो पवित्र किए गए हैं। I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूं आप इसको समझ रहे होंगे। So when it is written to some people who are sanctified, तो जब ये लिखी गई है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो पवित्र किए गए हैं, it is understood they have crossed justification, they have crossed sanctification. ये पहले से समझा जा चुका है कि वो पवित्रीकरण को पार कर चुके हैं, वो धर्मी ठहर जाने को पार कर चुके हैं, And they've also received the Holy Ghost. और उन्हें पवित्र आत्मा भी मिल चुका है। So Amen। this is not written to those people who don't have the Holy Ghost. तो ये जो चिट्ठी है उनको नहीं लिखी गई जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। Let me make that point clear. आइए मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा। Read chapter 1. पहला अध्याय पढ़िए। When he's writing this letter to these saints, जब वो इस चिट्ठी को लिख रहे हैं उन संतों को, he's also saying these words. वो इन बातों को भी कह रहे हैं। I'm reading from verse 13. मैं 13वीं आयत से पढ़ रहा हूं। In whom he also trusted after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that he believed, he was sealed with that Holy Spirit of promise. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है,
और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। So he's writing to those तो ये उनको लिख रहा है who are already sealed. जो पहले से मोहरबंदित हो चुके हैं, Sealed by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा इन पे छाप लग चुकी है। So you see, this So- letter of Ephesians cannot be understood by those who don't have the Holy Ghost. तो आप पाएंगे ये चिट्ठी जो इफिसियों की है ये उनके द्वारा नहीं समझी जा सकती जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। So don't even embark to read Ephesians if you are not born again. तो यहां तक कि मैं कहूंगा इफिसियों पढ़ने की आप हिम्मत भी मत करिए अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है। There's no point in reading this book. ये कोई बात ही नहीं, कोई फायदा नहीं होगा इस किताब को पढ़ने का। पहली 2-3 लाइनों में किल्ली उड़ गई. यस, He has made it very clear. उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इसको। This letter is only to a specific group of people ये चिट्ठी कुछ खास किस्म के लोगों के लिए है who are sealed by the Holy Ghost, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा मोहरबंदित हैं, who are saints. जो कि संत हैं। They have already gone through a process. वो पहले से एक क्रिया में से होके गुजर चुके They हैं। have finished justification. उन्होंने धर्मी ठहर जाना पूरा कर They चुका have है, finished sanctification. उन्होंने पवित्रीकरण पूरा कर लिया They have है, already received the sealing. उन्होंने पहले से छाप लगाए जाना प्राप्त कर लिया है, And they have received the earnest in their lives. और उन्होंने उस बयाने को ग्रहण कर लिया अपने जीवन में। Chapter 2 says, दूसरा अध्याय ये कहता है, and you hath he quickened. आमेन, उसने तुम्हें भी जिलाया। So he's not writing a letter to dead people. तो वो मरे हुए लोगों को चिट्ठी नहीं लिख रहा, He's writing letter to those who are already quickened. वो उनको चिट्ठी लिख रहा है जो पहले से जागृत किए गए हैं। So this letter will be understood by a quickened people. तो ये चिट्ठी केवल मात्र एक जागृत किए हुए लोगों के द्वारा ही समझी जाएगी। It can't be understood by dead unbelievers. ये मरे हुए अविश्वासियों के द्वारा नहीं समझी जाती। So they can't preach adoption. तो वो पुत्र अधिकार प्रचार नहीं कर सकते, They can't understand the mystery of his will. वो उसकी इच्छा का भेद नहीं समझ सकते, They can't understand dispensation of fullness of time. वो समयों के काल का पूर्तिकरण नहीं समझ सकते, And they can't understand predestination. और वो पहले से ठहराया जाना नहीं समझ सकते। So you see, to understand this, तो आप पाएंगे इसको समझने के लिए you already need to be filled with the Holy Ghost. जरूरी है कि आप पहले से पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हों। So you see, this is something like this. तो आप पाएंगे ये कुछ ऐसा है, When you start a class, जब आप एक क्लास चालू करते हैं, then the teacher comes and says to the class in the first lecture, जब तो टीचर जो है आता है, पढ़ाने वाला शिक्षक जो है वो पहले ही लेक्चर में क्लास को ये बोलता है, it is assumed you understand differentiation. ये माना जाता है कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ चुका है। It's understood that you understand basic geometry. ये माना जाता है कि जो आधार और बेसिक ज्योमेट्री है वो आपको पता है। It is understood that you understand integration. ये पहले से मान लिया गया है कि आपको इंटीग्रेशन भी समझ में आ चुका है। Then we are going to take this class. तब हम इस क्लास को लेंगे। You see, it is understood that you have this background with you. आप पाएंगे कि ये पहले से समझा जा चुका है कि आपके पास ये भूमिका है। So in other words, when Paul is writing to Ephesians, दूसरे शब्दों में जब पौलुस इफिसियों को लिख रहे हैं, he said it's understood. वो ये कह रहे हैं कि ये पहले से समझा जा चुका है। You are not those people आप तुम वो लोग नहीं हो to whom I have to preach again. जिनको मेरे को फिर से प्रचार करना पड़े। Have you received the Holy Ghost since you believed? क्या तुमने पवित्र आत्मा जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? Now you know what the Holy Ghost is. अब तुम जानते हो कि पवित्र आत्मा क्या है। You have been filled with the Holy आप Ghost. पवित्र आत्मा से भरे जा चुके हो। Let's go after the Holy Ghost. आओ हम पवित्र आत्मा के बाद वाली हिस्सों में चलें। And remember, after the Holy Ghost is another Exodus, और आप जानते हैं पवित्र आत्मा के बाद एक और निकासी है which Paul couldn't preach completely. जिसको पूर्णतः पौलुस नहीं प्रचार कर पाया। So he only preached it as a mystery. आप देखते हैं उसने केवल एक भेद के रूप में इसको प्रचार But किया, when the messenger came in the Omega age, परंतु जब संदेशवाहक ओमेगा युग में आया, he explained that third Exodus, उसने उस तीसरी निकासी को समझाया which starts with the baptism of Holy Ghost जो कि चालू होता है पवित्र आत्मा इसमें के द्वारा and goes all the way to the millennium, और ठीक मिलेनियम तक जाता है, dispensation of the fullness of times, समयों के कालों का पूर्तिकरण, that he might gather together all in one. ताकि वो हर एक चीज को इकट्ठा करे एक में। And for that, और उसके लिए he says, this is now not a baby's class. उसने कहा ये बच्चों की क्लास नहीं है, These are to the saints. ये संतों के लिए है, These are to those who are predestinated to an adoption. ये उनके लिए है जो पहले से ठहराए गए हैं पुत्र अधिकार प्राप्त करने के लिए। I can teach you some deeper things. मैं तुम्हें कुछ गहरी बातें सिखा सकता हूँ। You're not a Corinthian church तुम कोई कोरिन्थियों कलीसिया नहीं हो who are just
harboring, who are just fighting around gifts. जो कि वरदानों पे ही लटके रह गए और उसके ऊपर झगड़ा कर रहे हो And based down on that. और उसी पे लटके रह गए. You know the Pentecostal age. आप जानते हैं पेंटिकॉस्टल युग. But you are a different people. परंतु तुम एक फर्क किस्म के लोग हो. I'm teaching you what predestination is. मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि पहले से ठहराया जाना क्या है. So predestination can only be understood after the sealing. तो आप समझेंगे कि पहले से ठहराया जाना केवल छाप लगाए जाने के बाद ही समझा जा सकता है. Is that right, brother Joseph? Amen. Joshua? God bless you. Yeah. That's, Amen. his name is Joshua, and Joshua is Jehovah Savior. Amen. You know that message? Hallelujah. So can't you see that? तो क्या आप देख नहीं पाते? Can't you understand that, my brother क्या आप नहीं समझ पाते मेरे भाई and my sister? और मेरी बहन? There's no point in sitting in this meeting if you don't have the Holy Ghost. कोई फायदा नहीं है इस मीटिंग में बैठने का अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है. That's right. ये बात ठीक है. That's why I make a point to some my minister brothers, before bringing the people to this kind of meeting, ensure that they have a background. इसलिए मैं अपने प्रचारक भाइयों से आग्रह करता हूं कि इससे पहले कि आप इस किस्म की सभा में उन्हें लेके आए लोगों को, उनके पास जरूरी है कि एक किस्म की इस किस्म की उनके पास एक भूमिका हो. But since we are preaching to all the kinds of believers, पर क्योंकि हम हर एक किस्म के विश्वासी को प्रचार कर रहे हैं, as Brother Branham also did, जैसा भाई ब्रह्म ने भी किया, so you will find plenty of things which are dealing with those who are still not believers. तो आप पाएंगे बहुतेरी चीज जिनका संबंध उनसे है जो कि अभी तक विश्वासी नहीं बने, And even with us, और यहाँ तक कि हमसे भी, who sometimes falter on the way. जो कि कभी कभी मार्ग में कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाते हैं. That's right. ये बात ठीक है. But God brings us back in the line. पर खुदावन हमें वापस कतार में पंक्ति में लेके आते You हैं. believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? So let's go further in this Ephesians and see what the prophet is saying. तो आइए हम आगे बढ़े इस इफिसियों में और देखते हैं नबी क्या कह रहे Oh, हैं. what a message. I can tell you I was so blessed today morning. Amen. क्या संदेश है, मैं आपको बताना चाहूंगा. मैं आज सुबह बहुत आशीषित हुआ. Paul, Amen. an apostle of Jesus Christ, पौलुस एक प्रभु यीशु का प्रेरित, by the will of God. खुदा की इच्छा की So it द्वारा. was not the will of any man, ये किसी इंसान की इच्छा नहीं थी, it was the will of God. ये खुदा की इच्छा थी. The same man that wrote the Hebrew letter is writing this letter वही आदमी जिसने इब्रानियों की चिट्ठी को लिखा, वो इस चिट्ठी को भी लिखता है to the saints. संतों के नाम. So this is not to the unbelievers, तो ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, but to the saints, परंतु संतों के लिए है. the sainted ones. वो पवित्र किए गए पवित्र लोग. In fact, even not for the foolish virgin. यहां तक कि मैं कहूंगा मूर्ख कुंवारी के लिए भी नहीं. These saints are not saved church alone. ये जो संत हैं ये बचाया हुआ ही झुंड नहीं है, बस बचाई हुई कलीसिया ही नहीं है. Keep that in mind. इस बात को ध्यान में रखिए. There are things to be understood. चीजें हैं समझने के लिए. As the prophet said, in the saved group, there are two groups. जैसा कि नबी ने कहा, बचाए हुए झुंड में दो झुंड हैं. To receive salvation is one thing. उद्धार पाना तो एक बात है, To go in rapture is a little different. परंतु रैप्चर में जाना थोड़ा फर्क है. It is not just being saved. ये केवल बचना ही नहीं है. Amen. But it's something more than that. पर ये कुछ उससे ज्यादा है. I personally believe मैं पर्सनली ये विश्वास करता हूं, our God doesn't have 2 or 3 standards. हमारे खुदा के 2 या 3 पैमाने नहीं हैं. Since we have just read, rapture is predestinated. जबकि हमने अभी पढ़ा है कि रैप्चर पहले से ठहराया गया है. It would be mandatory. ये जरूरी होगा. And it will be also, I would say, on the part of God, और मैं कहूंगा ये खुदा पे भी आयद होगा. that He would bring that candidate to the word of this age. Amen, amen. कि वो उस शख्स को इस युग के वचन तक लेके आएगा. Amen. Yesterday, कल, again, I would not like to name him, फिर से मैं नाम नहीं but लेना he's a चाहूंगा, wonderful brother. पर वो बहुत ही बढ़िया भाई हैं. And he was preaching in a message church in America. और वो प्रचार कर रहे थे एक संदेश वाले चर्च में अमेरिका में. And he was preaching a very good point. और वो एक बहुत बढ़िया पॉइंट प्रचार कर रहे थे. And he said, और उन्होंने कहा, I personally believe, he said, and that's right, और उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली ये विश्वास करता हूं और ये ठीक है, if somebody is, for example, in a federal prison, अगर मान लो कोई एक जेल में है and he didn't hear about the prophet, he didn't hear about anything, but he just read his Bible and his scriptures,
and God dealt with him and God saved him. और उसको नबी के बारे में कुछ नहीं मालूम चला और उसने नबी के कोई भी संदेश को किसी चीज को नहीं पढ़ा, उसके पास बस बाइबल थी और उसने उसको पढ़ा और खुदावंद ने उसको बचा लिया। He said, I believe that man is saved. उन्होंने कहा कि मैं ये विश्वास करता हूं कि वो आदमी बच गया। I also said, Amen. मैंने भी कहा आमीन। My amen is there. Amen. मेरा आमीन है उस पे। But the next question, पर अगला सवाल, would he make it to the rapture? क्या वो रैप्चर तक पहुंच पाएगा? That is a different story. ये एक फर्क बात है। Some people say, what about the thief on the cross? कुछ लोग ये कहते हैं उस चोर के बारे में क्या जो क्रूस पे था, He just met the Lord in the last minute. उसकी मुलाकात प्रभु से तो आखिरी क्षण पे हुई। You're missing one point, brother. भाई आप एक बात को समझने में चूक रहे हैं। He recognized the word of his age. आमेन। उसने अपने युग के वचन को पहचान लिया था। Thou art that Christ. तू ही वो मसीह है। He understood that Christ who was hanging on the cross. वो समझ गया था उस मसीह को जो क्रूस पे लटका हुआ था उसके साथ। Somehow he was caught with the word of his age. किसी रीति से वो उस अपने युग के वचन के द्वारा पकड़ा गया था। And that is the reason और यही है कारण। the Lord said, today you shall be with me in paradise. आमेन। प्रभु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। So, I would like to say something. तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। Somebody didn't hear Brother Branham, somebody didn't hear anything, and he was reading his Bible and God dealt with him. Praise God. And he got saved. Amen. किसी ने भाई ब्रैनम के बारे में नहीं सुना, किसी ने भाई ब्रैनम के विषय में कुछ नहीं जाना और खुदावन ने उसके साथ डील किया, वो बाइबल पढ़ रहा था और खुदावन ने उसके साथ डील किया, वो बच गया। प्रेज गॉड, खुदा की तारीफ हो। But I also believe in that Bible. पर मैं उस बाइबल में विश्वास करता हूं। How the Lord came to Cornelius and said, call that man. आमेन। कैसे प्रभु करनीलियस के पास आए और बोला उस आदमी को बुला के ला। And he will teach you the right way. और वो तुझे सही मार्ग सिखाएगा। I believe in that Bible. मैं उस बाइबल में यकीन करता हूं। Where God led Paul and told, go to this Hananias. जहां पर खुदावन ने पौलुस की अगुवाई करी और हननियास को कहा कि तू इसके पास जा। And Hananias came to Paul and prayed and he received his eyesight. और हननिया जो है वो पौलुस के पास आया और प्रार्थना की और उसने अपनी दृष्टि वापस पाई। So when you talk about rapture, तो जब हम रैप्चर के बारे में बात करते हैं, it is mandatory, I believe, that he should know the word of the age. ये बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है। मैं ये विश्वास करता हूं कि उस शख्स को जो रैप्चर में जाने वाला है वो अपने युग के वचन को जाने। Otherwise, he's not a candidate. नहीं तो वो जाने वाला शख्स है नहीं। Amen. I'm telling you the facts. मैं आपको सत्य बता रहा हूं। He can be a saved man. वो बचा हुआ आदमी हो सकता है, He can have salvation. उसके पास उद्धार हो सकता है, But he may miss the rapture even after salvation. परंतु वो रैप्चर को पाने में चूकेगा यहां तक कि उद्धार के बावजूद। कई लोगों ने उद्धार और रैप्चर को जोड़ रखा है। जिसका उद्धार हो गया उसका रैप्चर भी हो गया। तभी मैं आपको समझा रहा था, उद्धार पाए हुए लोगों में दो झुंड हैं, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। मैसेज पढ़िए। आमेन, आमेन। This is a point to be understood. ये एक बात है समझने की। So it is not just important to be saved. तो ये केवल मात्र जरूरी नहीं कि आप बची जाएं। You know how Brother Branham used that UB, FO and SA terms. आप जानते हैं कि कैसे भाई ब्रैनम ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, यूबी और एफओ और ये तमाम ऐसे, That's right. ये सारे शब्द। Then you need to understand फिर आपको ये समझना जरूरी है that you need to be identified with the word of your age. कि जरूरी है कि आप पहचाने जाएं उस युग के वचन के द्वारा जो आपके युग का है। I will be identified with Jesus, brother. मैं भाई यीशु के साथ पहचाना जाऊंगा। Where is Jesus? तो यीशु है कहाँ? आमीन। Who is Jesus? यीशु कौन है? The manifested word of the age. प्रकट किया हुआ वचन युग का। That's where your revival is. ये वो जगह है जहाँ आपकी बेदारी That's है। where your rapture is. ये वो जगह है जहाँ आपका रैप्चर है। So Paul is not just writing to those who are saved. तो पौलुस केवल उनको नहीं लिख रहा जो बचाए हुए हैं। He's writing to some who are predestinated for an adoption. Amen. वो उनको लिख रहा है जो पहले से ठहराए गए हैं एक पुत्र अधिकार को प्राप्त करने के लिए। I think you can make out a difference. मैं सोचता हूँ आप फर्क को समझ पा रहे हैं। So it is not just having a testimony, I got baptized, brother. My sister said, I got baptized in the name of Jesus Christ. God dealt with me. Praise God. God dealt with you. You are saved. But now the next point, are you making it to the rapture?
तो ये केवल इतना ही नहीं है कि कोई भाई या बहन एक गवाही लेके आए, खुदा की तारीफ हो भाई मेरा बपतिस्मा हो गया, खुदा की तारीफ हो बहन कहे मेरा बपतिस्मा हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मैं बच गई। तो ये काफी नहीं है इस बात को जानना कि आप का बपतिस्मा हो गया, आप बच गए, आपका उद्धार हो गया, पर क्या आप रैप्चर तक पहुंच रहे हैं? out of that saved people there were foolish ones also. उन बचे हुए लोगों में से मूर्ख भी थे। Read the message. संदेश को पढ़िए। From where are you speaking, brother? भाई आप कहां से पढ़ रहे हैं? Read the message, 10 virgins. Amen. उस संदेश को पढ़िए, 10 कुंवारियां। And we understood on Sunday और हमने संडे को समझा that oil was the rapturing faith. Amen. वो तेल ही उड़ाने वाला विश्वास है। Everybody doesn't have it. हर एक के पास नहीं है। So in the last minute they said, give us some of your rapturing faith. And they said, we just got enough for ourselves. तो उन्होंने कहा आखिरी मिनट में कि अपना थोड़ा रैप्चरिंग फेथ दे दो। तो उन्होंने जवाब में यही कहा, हमारे पास पर्याप्त अपने लिए ही है। Friendship is good. दोस्ती बहुत अच्छी है, Friendship is wonderful. दोस्ती बहुत बढ़िया है, But rapturing faith is not distributed on the basis of friendships. परंतु उड़ाने वाला विश्वास दोस्ती के आधार पे बांटा नहीं जाता। If we just got enough for ourselves. अब केवल हमारे पास पर्याप्त अपने लिए ही है। अरे भैया हमारे पास रैप्चरिंग फेथ ना हो, इनके साथ रह लो या जिनके पास है, इनके साथ चलते जाओ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, लगे लिपटे में तुम भी निकल जाओगे। होगा नहीं, क्योंकि उसको भी नाप के उतना ही दिया जाएगा कि जैसे वो ही घुस पाए। Amen. तो वो चाहते हुए भी शेयर नहीं कर सकता, अगर शेयर करे तो अपना रैप्चर रोके। Yes. तो ये शेयर करने की चीज है नहीं। अब ये वो पॉइंट्स है जहां पे आगे लोग फिर थोड़ा चुप होते हैं, कमेंट्स भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। उस टाइम पे खुश हूं मैं, क्योंकि उस टाइम आप सोच रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूं अगर आप इन बातों को सोचें, अभी से सोचें रियल पिक्चर को, तो आगे के लिए तैयार होंगे। Amen. Praise God, God is dealing with me, and खुदा का धन्यवाद हो, I am saved, and but now the next point. खुदा की तारीफ हो, खुदावन मेरे से डील कर रहे हैं और अब मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। पर अगली बात, Have you got that rapturing faith? क्या आपके पास वो उड़ाने वाला विश्वास है? That oil, वो तेल which is called the Holy Spirit. जिसे पवित्र आत्मा बोलते हैं। Let me go a little further with you, आइए please. थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ। May God give me grace to show it to you. काश खुदावन मुझे अनुग्रह दे कि मैं आपको दिखा पाऊं। He's writing this letter to these saints, वो इस चिट्ठी को लिख रहे हैं उन संतों को which are at Ephesus, जो कि इफसुस में हैं and to the faithful in Christ Jesus. और मसीह यीशु में विश्वास योग्य हैं। Grace be unto you, अनुग्रह तुम्हारे को मिलता रहे and peace और शांति from God our Father हमारे खुदा पिता की ओर से and from the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Read the line again. हमारे खुदा और पिता, खुदा और प्रभु यीशु मसीह के पिता प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद का हो. धन्यवाद हो। So you see, the letter is written to those saints. Amen. तो आप पाएंगे जो चिट्ठी है उन संतों की ओर लिखी गई है। If you are not a saint, you'll make him 3. अगर आप संत नहीं हैं तो आप उसे 3 बना देंगे। You will never understand the revelation of this line. Amen. आप कभी भी इस पंक्ति का प्रकाशन नहीं समझ पाएंगे। But those who have revelation know why he's saying like that. परंतु जिनके पास प्रकाशन है वो समझते हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहा है। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. You see, many people have seen and looked upon Brother William Branham as an agency which was used to let them meet Christ. And now once they have met Christ, this agency can be sidelined. आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने भाई ब्रैनम को एक एजेंसी मात्र के रूप में ही समझा है कि एजेंसी इस्तेमाल होगी एक बारी मसीह से मुलाकात कराने के लिए, और जब एक बारी मसीह से मुलाकात हो गई तब इस एजेंसी का कोई जरूरत नहीं है, इसको आप किनारे रख सकते हैं। You see, Eliezer was only there till Rebecca met Isaac. ओ हाँ, आप देखेंगे एलियाजर तब तक वहीं जाता है जब तक कि इसहाक की मुलाकात रिबका से ना हो जाए। But once you are with the mighty angel, पर जब एक बारी आप बलि स्वर्गदूत के साथ हैं, you are in a higher realm. आप एक ऊंचे अय्याम में आ गए, So you don't, maybe, how should I say it? तो फिर आपको हो सकता है मैं You कैसे can, कहूं? I mean, the 7th angel is there, yes. हाँ, मेरा मतलब है हाँ 7वां दूत है, But now, he's away. पर हाँ वो थोड़ा सा हटके है। I'm with my mighty angel. मैं तो अब अपने बलि स्वर्गदूत के साथ हूँ। Let me tell you,
मैं आपको बताना चाहूं, that is where a spirit of error creeps in. ये वो जगह है जहां पर एक गलती का, गलत का आत्मा घुस जाता है। I don't know why. मैं नहीं जानता क्यों। Yesterday I was seeing this. It कल came मैं- before me yesterday. कल मैं इस बात को देख रहा था, ये मेरे सामने आई बात, It just came yesterday. ये ठीक कल मेरे सामने आई बात। In the year 2018, 2018 में Brother Joseph Branham went to Arizona भाई जोसेफ ब्रैनम एरिज़ोना गए for a personal talk with the Lord. एक निजी बातचीत के लिए खुदा के साथ। Listen what happened. सुनिए क्या हुआ। And when he went there and he stayed there for some time, और जब वो वहां गए और वो कुछ समय के लिए वहां बने रहे, he was trying to find out from the Lord certain things. वो प्रभु से कुछ खास चीजें जानना चाह रहे थे। And when he returned back, और जब वो लौट के आए, you know what he said? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? I didn't know it. I'm coming to know it now. मुझे नहीं पता था, मुझे तो अब पता लग रहा है ये बात। Immediately after coming back from Arizona, he addressed his church. एकदम से एरिज़ोना के से लौट के वापस आने के बाद वो उन्होंने अपनी कलीसिया को संबोधित किया। He said, this is the message. उन्होंने कहा ये है संदेश, Play those tapes. इन टेपों को बजाओ। आमेन, हालेलुया। I never met him. मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं I हुई। never talked with him. मेरी कभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। Isn't that the same Lord? हालेलुया। क्या ये वही प्रभु नहीं Through the beginning of this year, who is highlighting this point? जो कि साल की शुरुआत से इस बात पे जोर दे रहा है, Play those tapes. उन टेपों को बजाओ, Hear that voice. उस आवाज को सुनो। Oh, I love that voice. ओह, मुझे उस आवाज से प्रेम है। आमेन। Something in that voice. कुछ है उस आवाज में। यस, The word of this age. इस युग का वचन, I couldn't have got it. मुझे वो मिल नहीं पाता। There are so many points where the Lord talked with me in my heart, to my heart today morning when I was sitting. बहुत तेरे ऐसे पॉइंट थे जिससे होके खुदा ने मेरे से बात करी आज सुबह You हृदय know, में। many आज सुबह। times when you sit with this prophet, it's as if you're sitting in a washroom getting washed. ओ, कितनी दफा जब आप इस नबी से, यस दैट्स ट्रू, कितनी जब आप इस नबी के साथ बैठ के इसकी सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा मान लो आप एक गुसल खाने में बैठे हो और आप धोए जा रहे हो And all the trash is leaving your life. और हर एक तमाम किस्म का मैल गंदगी आपको छोड़ के जा रहा है। Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? आमीन, आमीन। You need to Amen. carry on that same anointing. हमें जरूरी है कि हम उसी अभिषेक को आगे बढ़ाते चले जाएं। A man can be saved, एक आदमी बच सकता है, but can he make it to the rapture? पर क्या वो रैप्चर तक पहुंच पाएगा? That's a little different story. ये थोड़ी फर्क बात है। Yeah. जी हाँ, As Brother Branham said, all babies go to heaven. जैसे भाई ब्रह्म ने कहा सारे बच्चे स्वर्ग जाते हैं, The blood is there for them लहू उनके लिए है because they don't know right and wrong. क्योंकि उन्हें सही गलत का मालूम नहीं। But will all babies go in rapture? पर क्या सारे बच्चे रैप्चर में जाएंगे? He said, that's a different story. उन्होंने कहा ये फर्क बात है, If your name is written in the book, only then. अगर आपका नाम पुस्तक में लिखा है केवल तभी। Yeah. आमीन, That's a आमीन। different story. ये तो फर्क बात है। All babies, if they die, go to heaven, but all babies go to the rapture. That's a different story. Read the message. सारे बच्चे जब मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, परंतु सारे बच्चे जब मरते हैं रैप्चर में जाते हैं, ये फर्क बात है। I mean, if a child is there, he's caught up alive. That's a different story. हाँ, मेरा मतलब है अगर बच्चा है और वो जीवित उठा लिया गया, ये एक फर्क बात है। He said that is only for those whose names are written. वो ये कहते हैं कि ये केवल उनके लिए है जिनके नाम लिखे गए मैं हैं। सोचता हूं आपको क्वेश्चन आंसर्स ध्यान से पढ़ना चाहिए. आमीन। Read the message more carefully. There's a संदेश- difference. संदेश को बड़े ध्यान से गौर से पढ़िए, एक फर्क है वहां पर। If that goes for babies, अगर ये बात लागू होती बच्चों पे, then what about adults? तो फिर वयस्कों पे क्या? Being saved is a different story. बचना एक फर्क बात है, Going in rapture is another. परंतु रैप्चर में जाना फर्क है। Now this Ephesians is written to that rapture group. आमीन। अब ये सियों उसको लिखा गया है जो कि वो रैप्चर वाला झुंड है, Those who have already got quickened, वो जो पहले से जागृत हो चुके हैं, who are his workmanship, जो कि उसके हाथों की कारीगरी है, who have understood his grace. जिन्होंने उसके अनुग्रह को समझा In है। other words, you can't understand grace till you receive the Holy Ghost. इसका मतलब दूसरे शब्दों में यह है कि आप अनुग्रह को समझ नहीं पाएंगे जब तक आप पवित्र आत्मा को ना प्राप्त करें। You can't understand what God did for you. आप ये नहीं समझ पाएंगे खुदावन ने आपके लिए किया क्या है। Let me read the scriptures now. आइए मैं पवित्र शास्त्रों को पढ़ूंगा। Grace be unto you अनुग्रह तुम्हारे को मिले and peace from God our Father और शांति
खुदा पिता की ओर से and from the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह की ओर से। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, मुबारक हो खुदा और पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. जिसने हमें उन स्वर्गीय स्थानों में मसीह में सारी आत्मिक आशीषें दी हैं। Verse 4. चौथी According as He. जैसा उसने हमें, Now listen close now, the fourth verse. अब ध्यानपूर्वक सुनिए चौथी आयत। According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. उसके अनुसार जैसा उसने हमें चुना था उसमें जगत की नींव रखने से पहले। Who is the us there? वो हम कौन है वहां? The church. कलीसिया। He chose us in Him, उसने हमें उसमें चुना था, Christ, मसीह में, before the foundation, the earth, जगत की नींव पृथ्वी की रखने से पहले, that we should be holy and without blame before Him in love. आमेन। Glory! हालेलुया। ताकि हम पवित्र हो और बिना किसी दाग के हो उसके सामने प्रेम में। He has chosen us to be blameless. उसने हमें बेदाग होने के लिए चुना है। हालेलुया। He has chosen us in Him that we should be holy. उसने अपने आप में, अपने अंदर उसमें उसने In चुना Christ, है, in मसीह Christ. में चुना है ताकि हम पवित्र हो And without blame. और बिना किसी दाग के हो। Then if He has chosen us to be without blame and without any unholiness, how can we be called unholy now? आमेन। तो अगर उसने हमें चुना है कि हम निर्दोष हो, बिना किसी दाग झुर्री के हो और हम पवित्र हो बिना किसी पवित्रहीनता के, तो हम कैसे अब अपवित्र हो सकते हैं? It's a very special class of people. ये एक बहुत खास किस्म की श्रेणी के लोग हैं। These statements cannot be generalized to everyone, ये ऐसे वाक्य हैं जो सब पे सामान्यतः लागू नहीं किए जा सकते, but it is to those specific saints पर वो उन खास संतों के लिए है for whom He says जिसके लिए वो कहता है that you should be holy and without blame before Him in love. कि तुम्हें पवित्र होना चाहिए और बिना और निर्दोष होना चाहिए उसके सामने प्रेम में। अनहोली तो ये भी था और अनहोली ये भी था और अनहोली आप भी थे, लेकिन ये क्या चक्कर, हालेलुया। कुछ लोग होली हो जाते हैं, आमेन, कुछ लोग होली चाहते हुए भी नहीं हो पाते, आमेन। कुछ अनहोली के अनहोली ही रह जाते हैं, चाहते हैं वो भी होली होना लेकिन वो होली हो नहीं पाते, और कुछ होली बन जाते हैं, आमेन, कोई बना देता है उन्हें। आमेन, हालेलुया, What is ग्लोरी। this mystery? ये है वो भेद, इसको देखिए, Listen, let me tell you carefully. सुनिए, मैं आपको ध्यानपूर्वक सुनाऊं। This बताऊं। letter is written to those who have the Holy Ghost. ये चिट्ठी उनको लिखा गई है जिनके पास पवित्र आत्मा है। I think you'll agree with me. मैं सोचता हूं आप मेरे साथ सहमत होंगे। After you receive the Holy Ghost, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद, you are in relationship with Him. आमेन, आप उसके साथ एक संबंध में आ जाते हैं। And let me tell you, a man doesn't open himself until you come in relationship with Him. और आप पाएंगे एक आदमी जो है अपने आप को खोल नहीं सकता जब तक कि आप उसके साथ एक संबंध में ना आए, रिश्ते में ना आए। A boy doesn't keep on sharing his personal life with every girl or every boy. एक लड़का अपने निजी जीवन की बातें, व्यक्तिगत जीवन की बातें हर एक लड़के हर एक लड़की के साथ शेयर नहीं करता। But one day comes that there is a particular boy and a particular girl who come in a relationship. परंतु एक खास दिन आता है जब एक खास लड़का और एक खास लड़की एक खास संबंध में आते हैं। केवल बातों में नहीं, वो रिलेशनशिप बनता है। रिलेशनशिप बनना, ये बातचीत चली, ये बातचीत चलने वाली बात नहीं है। जब रिलेशनशिप आती है, then he starts opening himself before her and she opens herself before him. तब ये होता है कि वो लड़का अपने आप को उस लड़की के सामने खोलता है और वो लड़की अपने आप को इस लड़के के सामने खोलती That है। is what's happening here in Ephesians. यही चीज हो रही है इफ्सियों में। हालेलुया। Some people who have come in relationship with God, कुछ ऐसे लोग जो खुदा के साथ एक संबंध में आए हैं, now he opens his secret. अब वो अपने रहस्य को खोल रहा है। I chose you, मैंने तुम्हें चुना था, not now, अभी नहीं, before the foundation of the world, जगत की नींव रखने से पहले, that you should be holy and without blame ताकि तुम पवित्र हो और निर्दोष हो in him, उसमें, that is in Christ.
जो कि मसीह है, then you start understanding a plan तब आप समझने लगते हैं एक योजना को which was always there. जो कि पहले से वहां थी। But till you came in relationship, you didn't understood that plan. पर जब तक कि आप उस संबंध में, आमेन, जब तक कि आप उस संबंध में ना आ जाएं, तब तक कि आप उस योजना को नहीं समझ पाएंगे। Things seem very strange to you. What's happening in my life? चीजें बड़ी विचित्र लगेंगी, क्या कुछ आपके जीवन में घट रहा है। But one day when you come in relationship with Him, परंतु एक खास दिन जब आप उसके साथ एक संबंध में जुड़ते हैं, then He starts opening Himself to you तब वो अपने आप को आपके ऊपर बेपर्दा खोलने लगता है and tell you, और आपको बताता है you are predestinated. तुम पहले से ठहराए गए थे, You are predestinated for this purpose. तुम इस खास उद्देश्य से ठहराए गए थे। Hallelujah. हालेलुया, आमेन। Taking Levi, now he's preaching predestination. लेवी को लेके अब वो पहले से ठहराए जाना प्रचार कर रहे हैं। Let me go a little further because I have other points. आइए मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास और भी पॉइंट्स हैं। Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to His own good pleasure of His will. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्राधिकार पुत्र हो, According to the good pleasure of His will. उसकी भली इच्छा के अनुसार। Now He's opening His will to you. अब वो अपनी इच्छा को आप पे खोल रहा है। Who did it? किसने किया ऐसा? God did it. खुदा ने किया ऐसा। God knew from the beginning खुदावन आरंभ से इस बात को जानते who would थे, be saved and who wouldn't be saved. कौन बचेगा और कौन नहीं बच पाएगा। Suddenly He was not willing for any to perish. पक्की बात है, वो को नहीं चाहते थे कि कोई बर्बाद हो। But He didn't send Jesus here just to see if you'd act like, well, poor Jesus, I feel sorrow for him. Maybe I better get saved and approve it. परंतु उसने यीशु को यहाँ पर इसलिए नहीं भेजा कि आप उसके सामने ऐसा काम करें, ऐसे करके दिखाएं, हाय बेचारा यीशु, मुझे बड़ा बुरा लगता है उसको देख के। देखो मेरे लिए अपनी जान भी दे दी उसने. Something like that. Maybe, oh, I should get saved ओ मुझे बच जाना चाहिए and approve his work. और उसके काम को पूरा होने दूं। मैं अप्रूवल देता हूं उसके काम को. आप अप्रूवल देने वाले कौन बने मेरे दोस्त? नहीं। यीशु पे तरस मत खाना. हाय कैसे मर गया क्रूस पे मेरे लिए. तो कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूं कि हां बोल दूं आपकी योजना के लिए. हां तरस खा रहे हैं यीशु के ऊपर. भाईलाल पहले कभी सुनाते थे, यीशु तुम्हें बुला रहा एक नजर तो देख लो. एक गाना था पुराना, यीशु तुम्हें बुला रहा एक नजर तो देख. बड़ा पुराना गाना था. कोई क्रिश्चियन ऐसे यीशु मसीह को समझ रहा जैसे कोई भिखारी डब्बा लिए बैठा है. जैसे कि मानो तुम कुछ करोगे तब यीशु का काम बनेगा. कितनी उल्टी सोच लोगों की है. Let's go a little further. आइए थोड़ा हम आगे बढ़ें. God doesn't run his work like this. खुदावन अपने काम को ऐसे नहीं चलाते. Maybe we should accept his plan. हाँ शायद हमें उसके योजना को ग्रहण कर लेना चाहिए. रो रो के वो बुला रहा है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ. और देखो मैं जा नहीं रहा हूं, मुझे जाना चाहिए. कम से कम उसका मैं रोना तो रोकूं. यीशु बेचारा रो रहा है. यह है सोच कुछ लोगों के. It is not like that. ये ऐसा नहीं है. God knowed in the beginning who would and who would not. खुदावंद आरंभ में पहले से जानते थे कि कौन आएगा और कौन नहीं है. So therefore he knew that some would. तो इसलिए वो जानते थे कि वो कुछ आएंगे. So he sent Jesus to make a propitiation for those that he foreknew. तो उसने यीशु को भेजा ताकि वो दाम चुकाए और प्रायश्चित करे कुछ के लिए जिनको वो जानता था पहले से. For those who he foreknew he has called. क्योंकि जितनों को उसने पहले से जाना उनको बुलाया. And those who he has called he has justified. और जितनों को उसने बुलाया उनको धर्मी ठहराया भी And है. those who he has justified he hath past tense glorified. और जिनको उसने धर्मी ठहरा दिया है उनको उसने भूतकाल बीत चुका महिमा भी दे दी है. There you are. यहां पर हैं आप. So it's not you that keeps yourself. तो फिर ये आप नहीं है जो अपने आप को रखते हैं. It's the grace of God Amen. that keeps you. ये तो खुदा का रहम है जो आपको रखता है. You didn't save yourself. आपने अपने आप को नहीं बचाया. Or nothing you have done to deserve being saved. और आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप कुछ डिजर्व करें, योग्य बने उस
उस उद्धार को पाने के लिए। It's God's grace that saved you. ये तो खुदा का अनुग्रह है जिसने आपको बचाया है। God's grace called you. खुदा के अनुग्रह ने आपको बचाया है, God's बुलाया है। foreknowledge knew you. खुदा का पूर्व ज्ञान आपको जानता था। He knew that you'd be in this church this night. वो जानता था कि आप आज रात्रि इस कलीसिया में होंगे। Before the foundation of the world was ever laid. जगत की नींव रखने से पहले जो कभी रखी गई थी। He knew you would be in this church tonight. वो जानते थे कि आज रात्रि आप इस चर्च में होंगे। If he isn't God. अगर वो नहीं जानता तो वो खुदा नहीं है। If he did know all things, अगर वो सब चीजों को जानता था he was God. तो वो खुदा था। Now I'm telling you, अब मैं आपको बता रहा हूं, after understanding this statement, इस वाक्य को समझने के बाद you knew I would be in the church tonight आप जानते थे कि मैं चर्च में हूंगा आज रात्रि, before the foundation of the world? जगत की नींव रखने से पहले। Then ask the next question. तो फिर अगला सवाल पूछिए, God, my God, हे मेरे खुदा, you don't do anything without purpose. आप कुछ भी काम बिना उद्देश्य से नहीं करते। Why have you allowed me to be in this church tonight? क्यों आपने अनुमति दी कि मैं आज इस चर्च में हूँ आज That रात्रि? means there is some purpose for me here. इसका मतलब कुछ उद्देश्य है मेरा यहाँ पर। There's a reason why I have come to the meeting today. कोई कारण है जिस कारण से मैं आज आया हूँ इस मीटिंग में। There's a reason I'm hearing this meeting from 9 p.m. ये कोई कारण है मैं इस मीटिंग को 9 बजे रात के सुन रहा हूँ। There's a reason I'm hearing this message. कोई कारण है कि मैं संदेश को सुन रहा हूँ। I'm not just hearing a BBC serial. मैं कोई बीबीसी का सीरियल नहीं सुन रहा। I'm not hearing Eddie Shoestrings. मैं एडी Shoestrings. शूस्ट्रिंग नहीं सुन रहा। I'm not hearing Old Fox. मैं कोई ओल्ड फॉक्स नहीं सुन रहा। I'm not hearing this. मैं कोई ये नहीं सुन रहा। I'm not hearing a detective crime thriller. मैं कोई डिटेक्टिव की कोई क्राइम थ्रिलर नहीं सुन रहा। I'm hearing the word of God, मैं खुदा का वचन सुन रहा हूँ, which is nothing but a bomb, पर जो कि कुछ नहीं है, एक बम है which can change lives. जो कि जीवन को बदल सकता है। Then why have you called me here? फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? Because the scripture also says, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये भी कहता no है, man can come to me until the Father draws him. कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे ना खींचे। Then you are drawn one. तो फिर आप खींचे हुए लोग हैं। Then somebody drawed you. तो फिर किसी ने आपको खींचा है। Something drawed you to this meeting. कोई है जिसने आपको इस मीटिंग में खींचा है। Somebody Hallelujah. drawed you tonight. किसी ने आपको आज रात्रि यहाँ खींच के लेके आया Some है। intelligence knew before the foundation of the world that you would be in this meeting tonight. कोई इंटेलिजेंस था जो जगत की नींव रखने से पहले जानता था कि आप इस मीटिंग में यहाँ होंगे आज रात्रि। What purpose would this meeting solve for you? क्या उद्देश्य ये मीटिंग आपके लिए पूरा करेगी? Find it out. इसे ढूंढिए। Amen, hallelujah. Nothing is without a purpose. कोई भी चीज उद्देश्यहीन नहीं होती। There's a reason why you are here. यही कारण है जहाँ जिस कारण से यहाँ पर आप हैं। There's a कारण reason है। why you are here tonight. एक खास कारण है जिस कारण से आप आज रात्रि यहाँ पर हैं। Amen. आमीन। If you did know all things, अगर वो सारी चीजों को नहीं जानता था, if you did know all things, I'm saying, अगर वो सारी चीजों को Brother Branham जानता था, Brother Branham says, he was बाइबल God. कहते हैं, तो वो खुदा था। If he didn't know all things, अगर वो सारी चीजों को नहीं जानता था, he wasn't God. तो वो खुदा नहीं था। If he's Almighty God, he can do all things. अगर वो सर्वशक्तिमान खुदा है तो वो सब चीजों You know को कर why? सकता है। आप जानते हैं क्या? He wants to give you something tonight. आप जानते हैं कि वो आपको कुछ आज रात देना चाहता है। I don't want Brother Branham to say once again, you missed it, sister. You missed it, brother. I want that you don't miss it tonight. मैं ये नहीं चाहता कि भाई ब्रैनम फिर से आज रात ये कहें कि आप उससे चूक गए मेरे भाई, आप उससे चूक गए मेरी बहन। वो चाहता है कि आप उसे प्राप्त करें। You know why? आप जानते हैं क्यों? This is very important for you and I to understand predestination. ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके और मेरे लिए कि हम समझ पाए पहले से ठहराए जाना। The minute you enter the hall, जिस क्षण आप हॉल में घुसते हैं, you say this word, आप इस वचन को, इस शब्द को बोलिए, I am predestinated for this meeting today. हालेलुया, आमेन। मैं पहले से ठहराया गया हूँ इस मीटिंग के लिए। यहाँ I am predestinated to be here tonight in this hall. मैं पहले से ठहराया गया हूँ आज रात्रि इस हॉल में होने के लिए। I am predestinated to hear this message tonight. मैं पहले से ठहराया गया हूँ इस संदेश को सुनने के लिए आज रात्रि। Why have you brought me here, Lord? प्रभु आप मुझे क्यों लेके आए यहाँ Then a पर? voice would say, तब एक आवाज कहेगी, you hath he chosen. तुम्हें उसने चुना है। हालेलुया, आमेन।
Amen. That's why I'm opening my word to you. इसलिए मैं अपने वचन को तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ। Amen. Let me go आमीन। further. आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। If He's Almighty God, अगर वो सर्वशक्तिमान खुदा है He can do all things. तो वो सारी चीजें कर सकता If He है। cannot do all things, अगर वो सारी चीजें नहीं कर सकता He is not Almighty God. तो वो सर्वशक्तिमान खुदा नहीं है। There you are. यहाँ पर हैं आप। So how can you say it's something you could do? तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसी चीज है जो आप कर पाते? बाइक पे किक मारी और मैं आ गया, No. कार में सेल्फ लगाया मैं आ गया, नहीं आ पाते, Yes. नहीं आ पाते। कुछ ऐसा हो जाता कि आप नहीं आ पाते, कुछ ऐसी बात खुदा ना खास्ता कि किसी अस्पताल में ना पहुंच गए होते। आज का मैसेज सुन लें, ये भी ग्रेस है। Amen. कुछ ऐसी खबर आई भैया मन बड़ा खराब हुआ, फिर मेरे को वहां जाना पड़ गया। अब वो ट्यूसडे की मीटिंग पॉडकास्ट पे मैं बाद में सुन लूंगा, वो भी मौका नहीं लग पाया। तो ये फिर पूछो यार ये मीटिंग सुन ही नहीं पाए हम तो अगर सुन भी लेते हैं तो ये एक रहम है किसी का। Amen. हर एक कोई सुन नहीं सकता मीटिंग, नहीं। Let me go further. आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। There you are. So how can you say it's something you could do? तो कैसे आप कह सकते हैं कुछ ऐसा है जो आप कर पाएंगे? It's nothing you can do. ये कुछ नहीं ऐसा है जो आप कर It's God's सकते हैं। love and grace to you ये खुदा का प्रेम और अनुग्रह है आपके लिए that you're even here. कि यहाँ तक कि आप यहाँ पर हैं। Nothing you could do. कुछ भी आप नहीं कर सकते थे। God called you by His grace. खुदा ने आपको अपने अनुग्रह के द्वारा बुलाया है। There are millions He rejected, brother. दसियों लाख है मेरे भाई जिनको उसने छोड़ दिया। पहले दिन भैया जब मैं यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज 6ठी मंजिल वीपी चेस्ट की बिल्डिंग जा रहा था और सीढ़ियां चढ़ रहा था, जब मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे मालूम है लाखों में निकल गए। और उसके बाद खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझ पर रहम किया। मेरे साथ एक और दोस्त था, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, तू भी है, एकदम चिल्ला के बोले, आप व्हाट मैटर्स नाउ मैन, वी गॉट सिलेक्टेड। ओ अब क्या फर्क पड़ता है, हम तो चुन लिए गए हैं। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। ये वो कह रहा था। What matters man? कोई आ रहा था, कोई कह रहा था भैया अभी वेट करो, ये होगा वो होगा। उसने कहा what matters man, we got selected, damn it. उसने कहा कि अरे अब क्या फर्क पड़ता है, हम तो चुन लिए गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। Sorry for using that word. I'm saying sorry for using that word, damn it. माफ कीजिए इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए। I mean that's a way of saying things. मेरा मतलब है वो चीजें कहने की May तरह। God forgive us. खुदावन आप हमें माफ करे। But that's a way of saying things. पर ये चीजें तरीके हैं कहने के। We got selected, man. ओ हम चुन लिए गए, हमारा चयन हो That's all गया। matters. ओ क्या फर्क पड़ता है अब? There were lakhs who didn't got 10 selected. लाख थे जिनको चुना नहीं गया। In a similar way, जब आप हॉल में घुसे तो ऐसे इस एटीट्यूड से घुसे। my. Man, I made it here. यस Man, I हालेलुया। made it among the saints. ओ मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। Man, I made it to the kingdom of God. ओ खुदा के राज में पहुंच पाया हूँ। I got selected. ओ मैं सिलेक्ट हो गया। हालेलुया। I got selected, brother. मेरे भाई मैं सिलेक्ट हो गया। He left millions. उसने 10 लाख को छोड़ दिया। Think of it, sister and brother. सोच के देखिए मेरे भाई मेरी बहन। He left millions. उसने 10 लाख को छोड़ दिया। But His grace came to you. और उसका अनुग्रह आपके पास आया। He हालेलुया। got selected, brother. ओ आप चुनलियाओं में आ गए मेरे भाई। What matters? We are white or black or tall or short. इससे क्या फर्क पड़ता है, हम ऊंचे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, Whatever our background is. कोई भी हमारी भूमिका हो। Rich, हालेलुया। poor, what does it matter? इससे क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया। Rich, poor, whatever it is. अमीर गरीब जो कुछ भी हो, What matters is we got selected, man. जो फर्क पड़ता है वो ये है कि हम चुने गए हैं। We are one in that. We are that one in a million. हम उस 10 लाख में से एक हैं। You made it, sir. ओ श्रीमान हम पहुंच चुके हैं। That's right. हालेलुया हालेलुया। That's the Amen. attitude that a believer has when he approaches God in His court, because the Bible says, "Blessed is the man whom God causes to approach in His courts." Amen. ये होता है एटीट्यूड, ये होता है तरीका जब एक विश्वासी खुदा के आंगनों में आता है, उसके करीब आता है, उसके पास, क्योंकि वचन ये कहता है मुबारक है वो शख्स जिसे खुदावन चुन के अपने समीप आने दे। Everybody doesn't receive that blessedness. हर एक शख्स उस मुबारकबादी को नहीं प्राप्त कर पाता। किसी से कहो बेटा मीटिंग चलोगे, किसी से कहो बेटा मीटिंग आओ, अगली बार देखूंगा, ये है वो है, yes, और कोई है जो आ जाता है। हालेलुया आमेन ग्लोरी।
Thank you, Oh, Jesus. may God give grace. ओ काश खुदावन अनुग्रह दे। It's only His grace. ये केवल उसका रहम है। That's why you are here tonight. इसलिए आज रात्रि आप यहाँ पर हैं। That's why you are here tonight. इसलिए आज रात्रि आप यहाँ पर हैं। Somebody chose you. किसी ने आपको चुना है। Think of that. सोच के बाद देखिए इसके विषय में। Isn't that a blessed thought? क्या एक मुबारक विचार नहीं? We made it. हम पहुंच गए। We were selected. हम सिलेक्ट हो गए। When you come to that hall, जब आप उस हॉल में आए, this is not an ordinary hall of Tughlaqabad. ये कोई ऐसी ऑर्डिनरी सामान्य हॉल नहीं है तुगलकाबाद का। No, no, this is not that hall. ओ ये ऐसा हॉल नहीं है। We are talking of fellowship with the saints. हम बात कर रहे हैं संतों के साथ संगति की। You are made it to that level. आप उस स्तर तक पहुंच गए। हालेलुया। Amen. There were millions who were trying to come to that, दसियों लाख थे जो उस तक पहुंचने की कोशिश में थे, but they were not able to make it. पर वो नहीं पहुंच पाए थे। But today you made it. पर आज हम वहां पहुंच पाए। हालेलुया। Glory. It's the grace of God. ये खुदा का रहम है। This grace doesn't come to everyone, ये अनुग्रह हर एक तक नहीं पहुंचता, but it came to you. पर ये आपके पास पहुंचा। हालेलुया। That's right. ये बात ठीक है। Amen. What a feeling of success. क्या सफलता की अनुभूति है। When they Amen. look at each other, punch each other and say, man, we got selected. जब एक दूसरे को तरफ देखते हैं, ओ मुक्के मारते हैं, बोलते हैं, ओ हम चुन लिए गए। When they enter LBS NNA, that is in Mussoorie, जब वो मसूरी में वो Lal Bahadur Shastri, where all these IS officers are trained. जहाँ पर IAS ऑफिसर को ट्रेनिंग मिलती है, जब वहां वो पहुंचते हैं, 16 lakh gave the paper. 16 लाख ने वो पेपर दिया था। We got selected. हम चुनाव में आ गए। Come on, man. ओ भाई, Let's have a jam party. ओ आओ हमारी जैम पार्टी हो। You know why we got selected? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सिलेक्ट हो गए। It's not that I knew better than anybody. ये इसलिए नहीं कि मैं दूसरों से बेहतर जानता था। वो लोग तो ये कहेंगे कि पता नहीं क्या ये संयोग था, हो गया. For a believer, it is not संयोग. It's Yes. the grace. It's the grace of God. हालेलुया। ये खुदा का अनुग्रह है, खुदा का अनुग्रह है, संयोग नहीं है। Amen. आमीन। If you can count yourself to be that group whom Paul is addressing tonight, अगर आप समझ पाए अपने आप को, वो झुंड जिनको संबोधित पौलुस आज कर रहा है, to the saints in Delhi, उन संतों को जो दिल्ली में है, who हालेलुया, escaped the corruption that is in the world through lust. जो कि वासना के द्वारा इस दुनिया में वो सड़ाहट पाई जाती है, उससे बच निकले। Amen. आमीन। You got selected. हालेलुया। आप चुनाव में आ गए, You became his choice. आप उसका चॉइस बन गए। He chose you. उसने आपको चुन लिया, And when he chose you, और जब उसने आपको चुना, he didn't chose you today to lose you tomorrow. उसने आपको इसलिए नहीं चुना आज कि आपको कल खो दे। Keep that in mind. इस बात को दिमाग में रखिए। Why are you not with the world tonight? आज रात्रि आप क्यों नहीं है दुनिया के साथ? Why are you not in some mall or some entertainment place or some place or maybe your TV serial or something? क्यों आप किसी मनोरंजन की जगह पे, एंटरटेनमेंट की जगह में, टीवी सीरियल के सामने या कोई ऐसी जगह पे नहीं है, मॉल में? Why are you at a broadcast station क्यों आप एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन पे पाए जाते हैं? where हालेलुया। rapture is being broadcasted? जहां पर रैप्चर का प्रसारण हो रहा है। हालेलुया। आमेन। ग्लोरी। Do you know? क्या आप जानते हैं? Right around you, angels are there. ठीक आपके इर्द गिर्द दूत हैं, And you're in a heavenly presence. और आप एक स्वर्गीय मौजूदगी में पाए जाते हैं। Believe it, brother, sister. मेरे भाई और मेरी बहन, इस विश्वास करिए इस बात पे। Amen. आमीन। Let me go a little further with you. आइए थोड़ा आगे बढ़ूंगा आपके साथ। Let's see what the prophet says. आइए देखते हैं नबी ने क्या कहा है। God called you by his grace. खुदावन ने अपने अनुग्रह के द्वारा आपको बुलाया, You listened, आपने सुना, heard, and accepted. और उसे ग्रहण किया। आपने सोचा मैंने कबूल किया। अरे आप कबूल कर ही नहीं सकते जब तक वो तुम्हें ना बुलाए। आमीन। ये अकल कबूल करने की खुलती भी नहीं यस। जब तक खुदाई ना खोले। एक सिंपल सा डिसीजन नहीं ले पाता इंसान जब तक खुदा का रहम ना हो। यस, दैट्स ट्रू। एक छोटा सा फैसला जो कि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, एक्चुअली लोग ले नहीं पाते। Let me go a little further with you. Amen. आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपके साथ। आमीन। आमीन। God called you by his grace. खुदावन ने अपने अनुग्रह के द्वारा आपको बुलाया, You listened, heard, accepted. आपने सुना, समझा और ग्रहण किया। Well, you say, Brother Branham, that makes it awful loose.
तो फिर आप कहेंगे भाई ब्रैनम ये बात तो बहुत ही हल्की हो जाती है फिर। Certainly does. हाँ ये बात है। आपने हर चीज को खोल दिया फिर तो, हर चीज तो बहुत आजादी वाली हो गई फिर तो। नबी कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, You're free. आप आजाद हैं। Well, that fellow can do anything he wants to. हाँ फिर वो आदमी कुछ भी जो करना चाहे कर सकता है। Because पहले से ठहराया जा चुका कि वो तो बचेगा, तो जो करना चाहे करे। अब उसके लिए अगले वाक्य हैं। आमेन आमेन। Absolutely. पक्की बात है। आप लोग कुछ कह रहे थे, नहीं मैं आपसे कह रहा हूं आप गलत हैं। नबी कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, जो करना चाहे करे। अब उस जो करना चाहे करे पे नबी के अब अगले वाक्य हैं, सुनिए। I always do what I want to do. मैं हमेशा वही करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। But if you are a Christian, पर अगर आप मसीह हैं, you don't want to do wrong. आप गलत करना नहीं चाहते। So वही करते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आपकी चाहत ही बदल गई ना। आमेन आमेन। चाहत ही बदल गई। आमीन। There's a little old girl sitting back there tonight, my wife. हाँ एक वहां पर पीछे बुजुर्ग लड़की है जो बैठी है, आज रात्रि मेरी पत्नी। I love her with all that's in me. मैं अपने अंदर जो कुछ है मैं उससे प्यार करता हूँ। And if I know that I could run around with another woman and get by with it, और अगर मैं ये जान लूं कि मैं अगर किसी और दूसरी औरत के साथ जाने लगूं और मैं उसको भी करने के बाद बच जाऊंगा, and go tell her and say, Meera, I did wrong. और मैं उसको वापस जाके कहूं मीडा मैंने गलत किया, Do you think I do it? क्या आप सोच सकते हैं मैं ऐसा कभी करूंगा? If I love her right, अगर मैं उसको ठीक तरीके से प्यार करता हूं, I won't do it. मैं नहीं करूंगा। That's right. ये बात ठीक है। He's explaining who are these sainted ones. वो समझा रहे हैं कि ये संत लोग कौन हैं। He's explaining who are these sanctified ones वो समझा रहे हैं कि ये पवित्र किए हुए लोग कौन हैं, who have received the salvation. जिन्होंने इस उद्धार को प्राप्त किया है। And I believe on the way to the rapture. और मैं विश्वास करता हूं अपने मार्ग में है रैप्चर के लिए। He's explaining it through a family relationship. वो एक पारिवारिक संबंध के द्वारा इसको समझा रहे हैं। Listen to the next quote. अगला कोट सुनिए। Now what if I'd say, oh, I can't do it? अब क्या हो कि अगर मैं कहूं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक औरत को देखा, दिल आ गया, जाना चाहते हैं, मालूम है गलत है, तो अचानक रोक लिया अपने आप को, नहीं नहीं मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं आपको एटीट्यूड समझा रहा हूं, प्लीज। नबी किस तर्ज में बात समझा रहे हैं? खुदा के साथ जब आप जुड़ते हैं एक रिलेशन में, तो गलत इसलिए नहीं करते, गलत मुझे गलत नहीं करना चाहिए, अंदर से दिल तो चाह रहा है। तब नबी अपनी पत्नी बहन मीडा का एग्जाम्पल लेके समझा। He's explaining by the example of sister Meera. वो समझा रहे हैं भाई बहन मीडा का एग्जाम्पल। If I really love her right, अगर मैं ठीक रीति से उनको वास्तविकता में प्रेम करता हूँ, if I love her right, I won't do it. अगर मैं उसको ठीक प्रेम करता हूँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। Not because I shouldn't do it, इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, but I love my wife so much पर मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूँ that this which is wrong is dead for me. कि ये चीज जो कि गलत है ये मेरे लिए समझो मरी हुई है। Multiply that by 1,000,000 times. इसको 10 लाख गुना कर लीजिए। When you are in love with God, जब आप खुदा के साथ प्रेम में होते हैं, when you are in love with Christ, जब आप मसीह के साथ प्रेम में होते हैं, sin becomes dead. पाप मर जाता है। Try to understand this point. इस बात को समझने की कोशिश करिए। Hey, मुझे ये नहीं करना चाहिए, oh नहीं नहीं गलत, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। जब तक आप ऐसे एटीट्यूड में हैं, अभी आप सही तरीके से प्रभु के साथ रिश्ते में हैं नहीं। जब आप अपने आप को सिखा रहे हो रोज, ये गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, या अभी भी आप अपने आप को सिखा रहे हैं। ये सिखा रहे हैं भाई ब्रैनम। क्या मसीह के साथ प्रेम में इतना बढ़ गए कि आपका दिमाग उधर जाता ही नहीं? क्या इस लेवल पे पहुंचे आप? I go a little further with you. मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा आपके साथ। Now comes the next quote. अब आता है अगला कोट। Now what if I'd say, अब क्या हो अगर मैं कहूं, oh I can't do it, ओ मैं नहीं कर सकता, cause I'll tell you why. क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों, She would divorce me. वो मुझे छोड़ देगी, And I तलाक दे got, देगी। oh I'm a preacher. ओ और मुझे तो मैं तो एक प्रचारक हूँ, See what that'll do.
आप देखते हैं उससे क्या होगा? That it take me out of the pulpit. ये बात तो मुझे पुलपिट से ही हटा देगी। ये था वो quote. This is that quote which I needed to show to some people. ये वो कोट है जो मैं चाहता था कुछ लोगों को दिखाना। Let me read it for you again. आइए मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। Brother Branham, in the form of a drama, says, भाई ब्रैनम एक ड्रामे के रूप में इसको कहते हैं। cause I'll tell you, if I do some wrong and Sister Amida divorces me, what will happen? अगर मैं कुछ गलत कर दूं और बहन मीडा जो है मुझे तलाक दे दें तो क्या होगा? I'm a preacher. मैं तो प्रचारक हूँ। See, what that will do? What that will do? क्या वो उस चीज से क्या करेगा? That will take me out of the pulpit. ये बात तो मुझे पुलपिट से अलग कर देगी। If she divorced me, अगर वो मुझे तलाक दे दे, a divorced man. एक तलाकशुदा आदमी हो जाऊंगा। Try to understand the point. समझने की कोशिश करिए इस बात पे। A divorced man cannot be a preacher. एक तलाकशुदा आदमी प्रचारक नहीं हो सकता। Here is that quote. यह है वो कोट। I wanted to show it to you. मैं आपको दिखाना चाहता था। This is one of those quotes. ये उन कोट्स में से एक है। That will take me out of the pulpit. ये बात तो मुझे पुलपिट से निकाल देगी। That's right. ये बात ठीक है। A divorced man cannot hold the pulpit. एक तलाकशुदा आदमी पुलपिट नहीं पकड़ सकता। No, he cannot. नहीं कर सकता। This is according to the word. ये वचन के अनुसार है। And I'm showing you that quote. और मैं आपको एक कोट दिखा रहा हूं। That is why इसलिए when cases were brought before me, जब कुछ केस मेरे सामने लेके आए गए, when a woman left a man जब एक औरत ने एक आदमी को छोड़ा and lived separately, और अलग से रही, or somebody who got divorced, और कोई ऐसा हो जिसका कोई तलाक हुआ हो, and they said anoint him as a pastor, और उन्होंने कहा कि इसको एक पास्टर के रूप में आप अभिषेक करिए, we cannot, हम नहीं कर सकते, because he cannot go to the pulpit. क्योंकि वो अब पुलपिट पे नहीं जा सकता। This is the legal part. Of course, Brother Branham is sharing something else. हाँ, ये कानूनी वाला बात है, परंतु भाई ब्रैनम तो कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। But that point came. पर वो बात आई। Amen. So that's a very important point. तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। A divorced man cannot be a pastor. एक डाइवोर्स्ड किया हुआ शख्स, एक तलाकशुदा आदमी पास्टर नहीं हो सकता। In fact, he can't hold the pulpit. मैं कहूंगा वास्तविकता में तो वो पुलपिट पे आ नहीं सकता। That's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। That's why if he's a married man, he should have his family with him under control. इसलिए अगर वो एक शादीशुदा आदमी है तो उसका परिवार उसके नीचे, उसके नियंत्रण में होना चाहिए। That's important. That's a qualification actually. ये एक पात्रता है, एक योग्यता है, मैं कहूंगा। But if somebody gets divorced, पर अगर किसी का तलाक हो जाए, well, he cannot. नहीं, वो नहीं कर सकता। And इस legal point को ये आदमी सोच रहा है, मेरी पत्नी अगर मुझे तलाक दे दे, मैं तो प्रचारक हूं, तो मेरी तो पुलपिटी चली जाएगी। तो भैया गलत मत करो, अपनी बीवी को खुश रखो ताकि वो डाइवोर्स ना करे। मैं एक एटीट्यूड सुना रहा हूं जो कि यहां पे नबी कोट कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये आदमी सोच क्या रहा है? शी विल डाइवोर्स मी, वो मेरे को तलाक दे देगी, देन आई विल बी टेकन, दैट टेक मी आउट ऑफ द पुलपिट, और ये बात मुझे पुलपिट से हटा देगी। शी डाइवोर्स मी, अ डाइवोर्स्ड मैन। हाँ, उसने मेरे को तलाक दे दिया, एक तलाकशुदा आदमी। Oh, I got 3 children. वो मेरे पास तो 3 बच्चे हैं। I couldn't think of that. मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता। मैं तो एक शादीशुदा हूं, मेरे पास तो बच्चे हैं, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। अरे विचारी क्यों आया? विचारी क्यों आया सर? अपने को सिखा रहे हो? क्या होगा अगर ये बात फैली? क्या होगा ये सब समझा के अपने आप को गलत, अपने आप को डरा के अब मैं गलत काम में ना पड़ूं, ये गलत है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरे पास तो 3 बच्चे हैं, मेरे पास तो ये, अगर मैं ऐसा करा क्या होगा? समझ मारिए, आपके ये विचार हैं जिसके कारण आप गलत नहीं कर रहे। नबी ये कहना चाह रहे हैं, Oh, I got 3 children. मेरे पास तो 3 बच्चे हैं। I couldn't think of that. मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। Boy, well, if that's the way it is, अगर लड़के, अगर ये वाली बात है, you are still legal. तुम अभी भी कानूनवादी हो। It's not legal basis that I married her upon. ये कोई कानून के आधार पे नहीं था जिससे मैंने उस पे शादी करी। He's talking about his wife. वो अपनी पत्नी के बारे में बोल रहे हैं। It's not legal basis that makes me live true to her. ये कानून के आधार पे नहीं है कि ये चीज मुझे विवश करती कि मैं उसके साथ विश्वास योग्य बना रहा हूं। रोज सुबह उठ के कानून के अंदर अपने आप को पीटते हैं, कूट के अपने आप को सीधा करते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ सही रहूंगा। पत्नी अपने आप को कूटे कि मैं अपने पति के साथ सही रहूंगी, दिल तो जा रहा है कहीं और।
दिल तो कहीं उड़ रहा है और, लेकिन अपने आप कूट काट के नहीं नहीं, खुदा के वचन की खातिर इन्हीं के साथ मिले रहो, खुदा के वचन की खातिर इन्हीं के साथ चले रहो, फिर क्या होगा बच्चों का, फिर क्या होगा परिवार का, दिल तो वैसे मेरा कहीं और है। That's nonsense. ये है बकवास। It's not legal basis that I married her upon. ये कानून आधार नहीं है जिसके आधार पे मैंने उससे शादी करी थी। It's not legal basis that makes me live true to her. ये कोई कानून के आधार पे नहीं जो मुझे उसके साथ सत्यता से रहने के लिए विवश करता है। It's because I love her. परंतु ये इसलिए है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। Husbands, love your wives. पतियों अपने पत्नियों से प्रेम करो, And wives, give reverence to your husband. और पत्नियां अपने पतियों का आदर करें। That is important. ये महत्वपूर्ण है। So it is not on legal basis. तो ये कोई कानून के आधार पे नहीं है। समझ मारिए, कानून की पूर्ति करने के लिए मैंने शादी कर ली है। कानून की पूर्ति नहीं होती शादियों में। शादी एक प्रेम का मामला है। Amen. Try to understand it. It's समझने की because कोशिश करिए। I love her. क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। I don't have to do anything. मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत। I do it willfully मैं अपनी पूरी इच्छा से करता हूँ because it's a love affair. क्योंकि एक प्रेम का संबंध है। That's right. ये बात ठीक है। You live true to her, you care for her, you do things for her because you love her. आप उसके लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं, आप उसका ध्यान रखते हैं, आप उसके लिए चीजें करते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। And if you love your wife, you'll do the same thing. और अगर आप अपनी पत्नी को प्यार करते हैं तो आप ऐसा ही करेंगे। He's explaining a husband and wife relationship. वो एक पति पत्नी के संबंध को समझा रहे हैं। And if you love your wife like that, और अगर आप इस तरीके से अपनी पत्नी से प्यार करते हैं with filial love, उस फिलियो प्रेम के द्वारा, what ought you to do to Christ with agapao love? तो आपको क्या कुछ नहीं करना चाहिए मसीह के साथ जिसके पास अगापाओ प्रेम है, Which is 1,000,000 times stronger. जो कि 10 लाख गुना ज्यादा बलवान है। If you really love God, अगर आप वास्तविकता में खुदा से प्रेम करते हैं, if I know tonight I could go out and get on a drunk, अगर मुझे ये मालूम हो कि मैं बाहर निकलूं और मैं शराब के नशे में आ जाऊं, if I know tonight I could run around and be immoral, अगर मुझे ये पता हो कि मैं बाहर आज रात्रि जाऊं और इधर उधर अनैतिक स्थिति में आ जाऊं, if I know tonight, अगर मैं इसको आज रात्रि जानूं, if that was even in my heart to do so, अगर यहाँ तक कि ऐसा अगर ये बात मेरे हृदय में भी हो करने के लिए, and I went and done it, और मैं उसको जाके करूं, knowing he'd forgive me, ये जानते हुए कि वो मुझे माफ करेगा, I wouldn't do it. मैं नहीं करूंगा। I think too much of him. मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ, I love him. मैं उससे प्यार करता हूँ। Are you understanding what he's trying to bring through to you? क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो आपके सामने क्या लेके आने की कोशिश You're कर not रहे हैं? living true to Christ because of fear. हम मसीह के साथ विश्वास योग्य इसलिए नहीं बने रहते डर की वजह से Or something will happen. कि कुछ हो जाएगा इसलिए, Our eternal life would be lost. हमारा अनंत जीवन खो जाएगा इसलिए, But we live true to him because we love him. परंतु हम उसके साथ विश्वास योग्य इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। I love him, sure, certainly. हाँ, पक्की बात है, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये पक्का है। Have you understood this point? क्या आप इस बात को समझे? Marriage is not on the basis of what you do, what you get, and what, on some legalities. अब जो शादी है उसके आधार पे नहीं होती कि आप जो करते हैं या आपको जो मिलता है, या मैं कहूँ कुछ कानून के आधार के ऊपर हो। In India, we have such marriages. हिंदुस्तान में ऐसी शादियां होती हैं, That's right. ये बात ठीक है, Because the eyes of the people are on such things. क्योंकि लोगों की आंखें ऐसी चीजों के ऊपर होती हैं। But a real, genuine marriage पर एक वास्तविक जो सही शादी होती है is a little above that, वो थोड़ा इसके ऊपर होती है, where there is genuine love. जहां पर एक वास्तविक प्रेम हो। That's why everything can fail, but love will not fail. आमीन। इसलिए सब चीजें चूक जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, परंतु प्रेम नहीं होगा। That's why we read that scripture in those marriages. इसलिए हम उस आयत को उन शादियों में पढ़ते हैं, Love abideth forever. प्रेम सदा काल तक ठहरे रहता है। That's the love we are talking about. ये है वो प्रेम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। That's right. ये बात ठीक है। So it's not a love, it's not a marriage based on legality. तो ये कोई ऐसी शादी नहीं जो कानून के ऊपर आधारित है। These are the same thoughts you'll find he carried forward in the message, marriage and divorce. यही वो विचार थे जिनको वो आगे लेके चलते हैं उस संदेश में, विवाह और तलाक वाले में। That's right. ये बात ठीक है। Marriages are not based on legalities.
शादियां हैं वो कानून को पूरा करने के ऊपर आधारित नहीं होती, Though there are some legalities with it, जबकि उनमें कुछ कानून की बातें शामिल भी हैं, but actually it is based on love. पर वास्तविकता में वो प्रेम के ऊपर आधारित है। Amen. Amen, amen. Amen. And a same relation with Christ. और यही एक संबंध होता है मसीह के साथ। आप कहीं गए, आपने कुछ गलत देखा, कुछ गलत मन में विचार आए, लेकिन मेरे घर में मेरी बीबी क्या सोचेगी? अरे बेवकूफ, मेरे तो बच्चे हैं। मेरा ये सवाल इस बात का है, आप कौन हैं? Amen. जिस दिन आपने शादी करके वायदे करे उसके साथ, आपके वायदे उसके साथ किस लिए थे? ऐसे ही? आज जब वो बड़ी हो गई आपके साथ, आज जब उसके अब बच्चे हो गए आपके साथ साथ, वो बढ़ रही है, अब तुम्हारी निगाहें कहीं और चल रही हैं। If there's a real love, it will grow stronger every day. अगर वास्तविक प्रेम है तो वो दिन प्रतिदिन तीव्र होता जाएगा। You know why? आप जानते क्यों? Because you and her have been through those thicks and thins. क्योंकि आप और वो जो आपकी पत्नी है वो उस उतार चढ़ाव में से होके एक साथ गुजरे हैं। You know, that's the way our Lord talked with his disciples. आप जानते हैं इस तरीके से प्रभु ने अपने चेलों से बात की थी। You have been with me in my temptations. तुम मेरे साथ मेरी आजमाइशों में रहे हो। You have been with me तुम मेरे साथ रहे हो in my ups and downs. मेरे उतारों में और चढ़ावों में। Greater love hath no man known that he lives life for his friend. इससे बढ़कर प्रेम कोई मनुष्य नहीं जानता कि वो अपने प्रेम, अपने जीवन को अपने मित्रों के लिए दे देता है। तब तक यहूदा इस्करियोती था वहां पे। The minute he left, he said, "Children." जिस क्षण वो गया उसने बोला बच्चों। I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। So when God came to save us, it was on the basis of love. तो आप पाएंगे जब खुदावन हमें बचाने के लिए आए तो ये प्रेम के आधार पे था। We need to study this more. हमें इसका और अध्ययन करने की जरूरत है। क्या रोज सुबह मैं अपने आप को मारता हूं, कसता हूं? अगर आज भी मुझे अपने आप को सिखाने की जरूरत पड़ती है कि मैं गलत ना करूं, तो मैं मरा नहीं। मैं मतलब पुराना वाला मैं, वो मरा नहीं अभी। जिस दिन वो मर जाएगा और अगापाओ प्रेम जाग जाएगा, उस दिन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को गलत मत करो। खुदावन के प्रति प्रेम इतना ज्यादा है कि आपको गलत देखने का मन ही नहीं करेगा। Amen. You getting the point? क्या आपको बात समझ में आ रही है? That is what the prophet is explaining here. यही चीज नबी समझा रहे हैं यहाँ पर। अब मैं आ रहा हूं अगले पॉइंट पे। I'm coming to a next point. अब मैं अगले बात पे आ रहा हूँ। Very important point. Please listen to it carefully because this is, I think, Amen. this will take my time. बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि ये मेरा समय लेगा। Explaining this relationship based on love. इस संबंध को समझाते हुए जो कि प्रेम के ऊपर आधारित है। And from filio he develops it to agapao. और फिलियो प्रेम से वो उठा के उसको अगापाओ प्रेम तक लाते हैं। That is between you and Christ. जो कि आपके और मसीह के बीच में है। Which is a million times stronger. जो कि 10 लाख गुना ज्यादा और तीव्र है। You will not even thinking of doing wrong. आप यहाँ तक कि सोचेंगे भी नहीं कुछ गलत करने का। You'll think how much he will feel hurt. आप ये सोचेंगे कितना ज्यादा उन्हें बुरा लगेगा। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? It is on the basis of love. ये सब कुछ प्रेम के ऊपर आधारित है। Now comes the next line. अब आती है अगली पंक्ति। It's a point in itself. ये अपने में एक पॉइंट है। That's the reason यह है कारण I wouldn't sell my experience. मैं अपने अनुभव को बेचूंगा नहीं To any denomination. किसी भी संस्थागत गिरजे को। No, sir. नहीं श्रीमान। No assemblies of God, no church of God, no pilgrim holiness. ना ही असेंबली ऑफ गॉड को, ना ही चर्च ऑफ गॉड को, ना ही पिलग्रिम होलीनेस को। Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic. मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथलिक को। I wouldn't take anything that could be offered for this experience. मैं कुछ भी नहीं लूंगा जो कुछ ऑफर किया जाए इस अनुभव के बनिस्बत। Because it never come by man. क्योंकि ये कभी भी मनुष्य के द्वारा नहीं आया। It come by God. ये खुदा की ओर से आया है। That experience which you received that night. वो उस रात खास जो आपने अनुभव प्राप्त किया। That experience that you received that day in your life. वो खास अनुभव जो आपने उस दिन अपने जीवन में प्राप्त किया। That experience is not cheap. वो अनुभव वो हल्का सस्ता नहीं है। This is what the prophet is saying here. यही चीज नबी कह रहे हैं यहाँ
पर the experience which he gave you वो अनुभव जो उसने आपको दिया to be born again, कि आप नया जन्म प्राप्त कर पाए, that experience which he gave you, वो अनुभव जो उसने आपको दिया which you can never forget in your life. जो अपने जीवन भर आप भूल नहीं सकते, You cannot trade that experience for the things of this world. आप उस अनुभव का सौदा नहीं कर सकते इन दुनिया की चीजों के साथ। You cannot sell your experience. आप अपने अनुभव को बेच नहीं सकते। Anything that can be offered to you, कुछ भी चीज आपको दी जाए, you cannot sell your experience. आप अपने अनुभव को बेच नहीं सकते। Oh, I love that statement. ओ मुझे ये वाक्य बहुत पसंद है, Because it never come by man. क्योंकि ये कभी भी मनुष्य के द्वारा नहीं आया, It came by God. ये खुदा की ओर से आया है। That day, in the morning, उस दिन, उस खास सुबह, in a noon time, उस दोपहरी के वक्त, when that angel came to Paul, जब वो दूत आया पौलुस के सामने, even in the last stages of his life, यहाँ तक कि अपने जीवन के when he's standing अंतिम before King Agrippa, जब वो अग्रिप्पा बादशाह के सामने खड़ा he said, है, I had never been disobedient to that heavenly vision. उसने कहा मैं कभी भी उस स्वर्ग के दर्शन का अनाज्ञाकारी नहीं रहा, Though I'm in bonds today, जबकि आज तो मैं उन बेड़ियों में हूँ, but I've got no problem. पर मुझे कोई समस्या नहीं है। I will not trade my experience for something. मैं अपने अनुभव का सौदा किसी भी चीज के लिए नहीं My करूंगा। brother, मेरे भाई, my sister, मेरी बहन, listen to this tonight. इसको आज रात्रि सुन The लीजिए। experience he gave you वो अनुभव जो उसने आपको दिया है to be born again कि आप नया जन्म प्राप्त करें, is not a cheap something. ये कोई सस्ती चीज नहीं, It cannot be traded. इसको बेचा नहीं जा सकता। It is more precious than gold. ये सोने से ज्यादा बढ़कर कीमती है। Think on it. इसके विषय में सोचिए Cherish it every day. और उसको अपने Cherish it every day. उसको हमेशा अपने दिल से लगाइए And think on it. और उसके विषय में सोचिए। There were millions who wanted what you want, दसियों लाख चाहते थे जो आपको मिला है, but they never got it. पर उन्हें कभी नहीं मिला। Millions of sperms dry. Only one lives to fertilize an egg. दसियों लाख शुक्राणु कोशिश तो करते हैं, केवल एक शुक्राणु पहुंच सकता है जो उस अंडे को फर्टिलाइज करता है। You were predestinated not to be just a man, but to be a God. आप पहले से ठहराए गए केवल एक आदमी होने के लिए नहीं, परंतु खुदा होने के लिए। Then you need to understand तो आपको समझना जरूरी when है, you are that one in a million. आप वो 10 लाख में से एक That हैं। experience he gave you, वो अनुभव जो उसने आपको दिया, you cannot sell it for a meal ticket. आप उसको खाने के टिकट के लिए बेच नहीं सकते। You know how that slave conducted himself अब जानते कैसे वो अपने आप को गुलाम चलाता था in that southern plantation? उस सदन प्लांटेशन में। He was not for sale वो बिकाऊ नहीं था, because he knew he was the son of a king, क्योंकि वो जानता था वो एक राजा का बेटा है, and he conducted himself like one. और वो अपने आप को वैसे ही चलाता था। That's why I want to tell you, my brother, my sister, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, the experience he gave you वो अनुभव जो उसने आपको दिया है cannot be sold for money. वो पैसे के लिए बेचा नहीं जा सकता। It is not worth, nothing is worth that experience. मैं कहूंगा कि उस तजुर्बे का कोई भी मूल्य आंका नहीं जा सकता, कोई सानी नहीं। I wouldn't sell my experience. मैं अपने अनुभव को बेचूंगा नहीं। Can you do it, brother? क्या आप ऐसा कर सकते हैं मेरे भाई? Can you do it, sister? क्या आप ऐसे कर सकती है मेरी For a बहन? meal ticket? एक ऐसे खाने के टिकट के लिए? No, you cannot. नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। I won't take anything that could be offered for this experience. मैं कुछ भी नहीं लेना चाहूंगा, जो कुछ भी दिया जाए इस अनुभव के बनिस्बत। वो रात, वो दिन, वो दोपहर, when God came in your house, when God came in your life, when he dealt with you, वो जब खुदावन आपके घर में आया, जब आपके जीवन में आया और उसने आपसे डीलिंग करी, that experience cannot be traded for anything else. वो अनुभव किसी के साथ भी बेचा नहीं जा सकता। No, sir. नहीं श्रीमान, I wouldn't sell my birthrights for any Elvis Presley's rock and roll. मैं अपने जन्मसिद्ध अधिकार को किसी एल्विस प्रेस्ली के रॉक एंड रोल के लिए नहीं बेचूंगा, Or for his fleet of Cadillacs. या उसकी कैडिलैक की श्रृंखला के लिए। Catholics, he says, or his Cadillacs. First he says Catholics, then he says Cadillacs. पहले वो कैथलिक कह देते हैं, फिर वो कैडिलैक कहते हैं गाड़ी। It's the same thing. वही एक समान बात है। I hope you don't count it as a joke, but it's a fact. मैं सोचता हूँ आप इसको एक मजाक के रूप में ना ले, परंतु ये बात सत्य है। Or his $1 million and so forth. या उसके 10 लाख डॉलर, ये तमाम चीजें He gets each month. जो उसको हर महीने मिलता है। You know कितना मिलता है उसे हर महीना? आपको मालूम हर महीना वो कितना लेके जाता है घर? उसकी टेक होम कितनी है? ऑफिस में ये डिस्कस होता है। उसका पैकेज कितना है? मालूम पैकेज?
अरे पैकेज के सुनने वाले बेवकूफ, सुन, वो अनुभव तो तुझे उस रात मिला, उसके सामने दुनिया का कोई पैकेज आमेन, वे नहीं करता। यस, हालेलुया, आमेन। करोड़ों का भी पैकेज मिल जाए, वो अनुभव एक तराजू के पलड़े में रख और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों रख दे, बराबर है नहीं। आमेन, दैट्स ट्रू, हालेलुया। ये कह रहे नबी यहां पे, हाउ मच एल्विस प्रेस्ले टेक्स होम, कितना एल्विस प्रेस्ली अपने घर लेके जाता है? $1,000,000 and so forth, 10 लाख, और ये सब डॉलर which he gets each month. जो उसे हर महीने मिलते हैं। No, sir. नहीं श्रीमान, I love him. मैं उससे प्यार करता हूँ, And if I long as I love him like that, और जब तक कि मैं उसको वैसे ही प्यार करता रहूं, I'll stay true to him. मैं उसके साथ सत्यता से बना रहूंगा। And if God's called me अगर और खुदा ने मुझे बुलाया है and elected me, और मुझे चुना है, He's placed something in me. आमेन, उसने कुछ मेरे अंदर रखा है। He has हालेलुया, placed something in me. उसने मेरे अंदर कुछ रखा है। I know that is a hidden potential. मैं जानता हूँ कि एक छुपी हुई क्षमताएं He हैं। has placed something in me. उसने मेरे अंदर कुछ रखा है And I love him. और मैं उससे प्यार करता हूँ। This is a very wonderful point. ये एक बहुत अद्भुत बात है, I पॉइंट wouldn't है। sell my experience. मैं अपने अनुभव को नहीं Oh बेचूंगा। my, what a statement. ओ क्या ये वाक्य है। That experience which Hallelujah. you got in Christ, वो अनुभव जो आपको मसीह में मिला है, you can never trade it आप उसका सौदा नहीं कर सकते for anything in this world. दुनिया में किसी भी चीज के लिए। I remember Mr. Eisler. मुझे याद है मिस्टर आइजलर, You all know him, most all of you. आप सब जानते हैं, आप में से कई लोग। He's come out here, he's come out here, state senator of Indiana. और वो यहाँ पर आया था, जो कि स्टेट सेनेटर था इंडियाना का, Come here, play his guitar. और यहाँ पर आके अपना गिटार बजाया था। When my baby had died जब मेरा बच्चा मरा था and my wife had died, और मेरी पत्नी मर गई थी, and all of them laying up here on the graveyard, और वे सब यहाँ पर कब्रिस्तान में गाड़े गए थे, and I was going up the road with my hands behind me crying. और मैं सड़क पे जा रहा था अपने हाथ को पीछे करके रोते हुए। He jumped out of his little old truck वो अपने छोटे ट्रक में से बाहर निकल के आया and come put his arm around me and said, और around आके me said, मेरे ऊपर अपना कंधा रखा और बोला, Billy, बिली, I want to ask you a question. मैं तुमसे एक सवाल पूछना Said, चाहता I हूँ। heard you preach till you'd almost fall in the pulpit. उसने कहा कि मैंने तुम्हारे को इतना सुना है कि तुम इतना प्रचार करते हो जब तक कि तुम पुलपिट पे गिरी ना जाओ। Heard you on the street corners. तुम्हें सड़क के कोनों में सुना है And प्रचार करते everything, हुए। crying out for Christ. सब कुछ मसीह के लिए तुम इतना चिल्लाते हो। Said, कहा now he took your daddy, अब उसने तुम्हारे पापा को ले लिया, he took your brother, उसने तुम्हारे भाई को ले लिया, snatched them both, उन दोनों को छीन लिया, and they died in your arm. और वो तुम्हारे बाहों में मर गए, There they die. वहां मरे। Your wife died, तुम्हारी पत्नी मर गई holding your hands, तुम्हारे हाथ को पकड़े हुए, and your baby died, और तुम्हारा बच्चा मर गया, and you calling on him to help you, और अब तुम उसे फिर बुला रहे हो तुम्हारी मदद करने के लिए, and he turned his back on you. और उसने अपनी पीठ दिखा दी तुम्हारे को। What do you think about him? क्या सोचते हो तुम उसके बारे में? I said, मैंने कहा I love him with all that's within me. मैं उससे सब कुछ जो मुझ में है उससे बढ़कर प्रेम करता हूँ। If he sends me to hell, अगर वो मुझे नरक भेजे I'll still love him. तो भी मैं उससे प्रेम करूंगा। Now this is the condition of a man who's really got the Holy Ghost. अब ये है स्थिति एक ऐसे आदमी की जिसको वास्तविकता में पवित्र आत्मा मिल चुका है। I hope you understand it now. मैं आशा करता हूँ आप ये समझे होंगे आज। Whatever happens and goes, कुछ भी हो जाए और हो चला जाए, my love for him will grow stronger every day. मेरा प्रेम उसके लिए और तीव्र होता जाएगा। Amen. आमीन। He's just, I don't say that. मैं ये नहीं कहता वो मेरे लिए, मतलब प्रभु मेरे लिए. प्रभु मेरे लिए, I don't say that. मैं ये नहीं कहता। 26 years has proved it. 26 साल ने इस बात को साबित किया That's है। right. ये बात ठीक है। If you love him, अगर आप उससे प्रेम करें, not a duty किसी कर्तव्यबद्ध होके that नहीं I can't do this and I can't do that. कि मैं ये नहीं कर सकता, मैंने वो नहीं कर सकता। You love him too much to do it. आप उससे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो आप के लिए करना कोई बड़ी बात नहीं, Because he has chosen you. क्योंकि उसने आपके लिए चुना है। You never आपको chose चुना him. है। आपने उसे कभी नहीं चुना, He chose you. उसने आपको चुना है। You said,
आपने कहा, I sought the Lord and sought the Lord. ओ मैंने प्रभु को ढूंढा और ढूंढा। No man seeks God. कोई आदमी खुदा को नहीं ढूंढ पाता। It's God seeking man. ये तो खुदा है जो आदमी को ढूंढता है। हालेलुया। You might be seeking a favor of him, आप हाँ उससे कोई एक फेवर चाहते होंगे, but God has to change your nature before you can even seek after him. परंतु जरूरी है कि खुदावंद को आपका स्वभाव बदलना पड़ेगा, ठीक इससे पहले कि आप उसे ढूंढ पाए। मैं उसे ढूंढ रहा था, आप ढूंढ भी नहीं सकते जब तक पहले वो आपके नेचर को ना बदले। आमीन, आमीन। ये भी उसका काम है। जब आप कहे मैं खुदा को ढूंढना शुरू किया, खुदावन मुस्कुराएंगे, यही तो मैंने तुम्हें दिया कि तुम मुझे ढूंढो। तुम मुझे ढूंढ भी नहीं सकते थे अगर मैं तुम्हारे अंदर ये नेचर ना बदलता कि तुम मुझे ढूंढो। अंडरस्टैंडिंग इट? बट गॉड हैज टू चेंज योर नेचर क्या आप समझ रहे हैं? परंतु खुदा को आपका स्वभाव बदलना होगा बिफोर यू कैन इवन सीक आफ्टर हिम, ठीक इससे पहले कि आप उसको खोजने के लिए निकलें, बिकॉज यू आर अ सिनर, क्योंकि आप एक पापी हैं, यू आर अ पिग। आप एक सुअर हैं। दैट्स राइट। ये बात ठीक है। And some of you people going to church and just living by your membership, go out here and do everything of the world and then still go back and say, yeah, I belong to the church. और आप में से कुछ लोग जो हैं चर्च जाते हैं और अपनी केवल मेंबरशिप के कारण ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और वहां जाके बोलते हैं और पूरी सारी चीजें दुनिया की करते हैं और फिर भी वापस जाके ये कहते हैं, हाँ मैं तो इसी कलीसिया का हूं। Well, that's a long ways from belonging to God. पर मैं कहूंगा ये कहीं ज्यादा दूर है उस बात से कि आप खुदा के कहलाएं। Certainly I don't. But you see people doing that, you can tell. हाँ पक्की बात है, मैं नहीं, परंतु आप देख पाते हैं लोग ऐसा करते हैं, तब आप बता पाते हैं। तब आप कह सकते हैं कि क्या ये बचे हैं या नहीं बचे। आमीन। Oh, they are good church members. ओ ये बहुत बढ़िया कलीसिया के सदस्य हैं। That's true. You can still be a church member. हाँ ये बात सही है, ये बात सच्ची है कि आप एक कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं And do those things. और उन चीजों को कर ले। यानी दुनिया की चीजों करके और चर्च के सदस्य बन के रह सकते हैं। यस। But you can't be a Christian and do them. परंतु आप मसीह नहीं हो सकते और तब उन चीजों को करें। क्या मतलब? Is there a difference between Christian and church member? क्या ये कोई फर्क है एक मसीह में और एक कलीसिया के सदस्य में? Oh, brother, it's a huge difference ओ भाई एक बहुत बड़ा फर्क है between a church member and a Christian. एक मसीही और एक चर्च मेंबर के बीच में। You mean every church member is not even a Christian? आप पाएंगे कि हर एक चर्च मेंबर मसीह भी नहीं है। No, sir. नहीं श्रीमान, No, sir. No, sir. नहीं श्रीमान। Every church member is not a Christian. हर एक चर्च मेंबर मसीह नहीं है। You mean coming to church? Only Christians come to church. ओ आपका मतलब कि चर्च आना केवल मसीह तो आते हैं चर्च में। Every church member is not a Christian. हर एक चर्च मेंबर मसीह नहीं है। This quote. ये कोट, That's right. ये बात ठीक है। Every church member is not a Christian. हर एक चर्च मेंबर मसीह नहीं है। हमारे चर्च में जो आने वाले सब क्रिश्चियन नहीं है। Yes. Because Christians won't do what many people do. क्योंकि मसीही वो नहीं करेंगे जो बहुत तेरे लोग करते हैं And still remain a church member. और तो भी मसीह एक चर्च मेंबर बना रहे हैं। Are you understanding that? क्या आप समझ रहे हैं? Church members can trade off with any kind of an experience they have. चर्च मेंबर तो किसी भी अपने अनुभव का सौदा कर सकते हैं, But a Christian cannot. पर एक मसीह नहीं कर सकता। Amen. The salvation which you received, वो उद्धार जो आपने प्राप्त किया है, this message which you received in the last days, ये संदेश जो आपने इन अंत के दिनों में ग्रहण किया है, is not a cheap thing. ये कोई सस्ती चीज नहीं है। No. नहीं। Put your degrees on one side अपनी डिग्रियां एक तरफ रख दीजिए and put this salvation and redemption and rapture on one side. और इस उद्धार को और इस छुटकारे को और इस रैप्चर को एक तरफ रखिए। There's no comparison. कोई तुलना है नहीं। Make your decision tonight, brother. मेरे भाई आज रात्रि अपने फैसले को लीजिए। Make your decision tonight, sister. मेरे बहन अपने फैसले को आज लीजिए। I'll read it till here मैं यहीं तक पढ़ूंगा आज, because I had lot to read, but I can't. क्योंकि मेरे पास बहुत था पढ़ने के लिए, पर मैं नहीं पढ़ सकता। How women behave, how men behave.
कैसे आदमी बिहेव करते हैं, कैसे औरतें बिहेव करती हैं। Oh, there are so many things to learn. बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, But I'll just say one thing. पर मैं केवल एक ही बात कहूंगा। Are you a Christian क्या आप मसीही हैं or just a church member? या केवल एक चर्च मेंबर हैं? Christian is that person who loves his Lord मसीही तो वो शख्स है जो अपने प्रभु से प्यार करता है so much इतना that he doesn't want to look at the world. कि वो दुनिया की तरफ देखना भी नहीं चाहता। Have you come to that point? क्या आप उस स्तर पे पहुंचे? And if not, और अगर नहीं, come down on your knees अपने घुटनों पे आइए and say, Lord, और कहिए, प्रभु I've been weighed in your balances tonight, मैं आज रात्रि आपके तराजू में तौला गया हूं, but I've been found wanting. पर मैं हल्का पाया गया। I submit myself to you, O Lamb of God. हे खुदा के मेमने, मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूं। Let me die मुझे मरने दें so that I can be victorious with you. कि मैं आपके साथ जयवंत हो पाऊं। Give me grace, Lord, मुझे अनुग्रह दें प्रभु to live with you a life of victory. कि आपके साथ एक जीत का जीवन जी पाऊं। Wouldn't you like that, brother? क्या आप नहीं चाहेंगे मेरे भाई And that sister? और मेरी बहन? God bless you. खुदावन आपको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Oh, what a message. ओ क्या संदेश है। आमेन। I pray tonight, Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं आज रात्रि for those who are on the way उनके लिए जो मार्ग में है and this sin cursed world and its glamour sometimes blinds the eyes of some. और खुदावन ये पाप से श्रापित ये चमक धमक दुनिया की कभी कभी कुछ लोगों की आंखों को चुंधिया देती है। I pray, Lord, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, draw them. उन्हें खींचिए, Give them grace to be drawn to you. उन्हें अनुग्रह दें कि वो आपके प्रति खिंच पाए। Even this attitude that I want to seek God cannot come like that. यहां तक कि एटीट्यूड खुदावन की मैं आपको खोजना चाहता हूं, ये यूं ही नहीं आ सकता। It's your call. ये आपका बुलाया जाना है। You don't call everyone. आप हर एक को बुलाते नहीं खुदावन। Oh God, I pray ओ खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं for my precious brother, मेरे पेशकीमती भाई के लिए, my sister, मेरी बहन के लिए, that young boy, वो जवान लड़का, that girl वो लड़की who wants to come to you tonight. जो आज रात्रि आपके पास आना चाहता है। They have lifted their hands to you. उन्होंने अपने हाथ को उठाया आपके ओर। I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, change them, उन्हें बदल दे खुदावन। that old serpent die. वो काश वो पुराना सांप मर जाए। Let them be filled so much with your love ओ खुदावन, ऐसा हो कि वो आपके प्रेम से इतना भर जाए that this world becomes dead to them. कि ये दुनिया उनके लिए मर जाए। Oh God, have mercy. खुदावन रहम करें। As we submit ourselves into your hands of grace, जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सुपुर्द करते हैं, give us grace to follow this word. हमें अनुग्रह दें कि हम इस वचन का अनुकरण करने पाएं। As we submit ourselves into your hands of grace, जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में समर्पित करते हैं, be in our meetings in the future आने वाली मीटिंग में हमारे साथ हो and talk more with us. और हमसे और अधिक बात करें। In the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में we ask this prayer. हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मुल्क से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। गॉड ब्लेस यू। Shalom. Rajiv, you can pick up this.